So as we can see on the screen, the first decade of POCSO Act in India ends today, that is 14 November 2022. It was first enacted in 2012. The topic for the entire talk today is the law, of course, the act as the legislation, the implementation or the execution of it, the roadblocks or the challenges that we have faced or the system has faced as a whole, and of course, the way ahead, the future ahead. Now, to know our speakers, which is very important when we begin any such session, I would quickly like to introduce Deepa Rafiq ma'am to anybody who's listening and anybody who would be viewing the recording later. Deepa Rafiq ma'am is a co-founder of We Legal, which is a legal consultancy firm providing solutions to legal issues and imparts trainings for corporates and individuals alike on legal topics. Mrs. Rafiq began her journey with her signature programs, Be a Posh Enabler, Train the Trainer, and Be a POCSO Torchbearer. We Legal has around 350 trainers in its network till date. I'm sure it's been growing every now and then. And she is presently heading the Wiki Karnataka Anti-Sexual Harassment Council as state president for past 1 year and doing wonderful work there as well. Mrs. Rafiq has authored a book on posh law titled Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace, Law and Practice. As regards our introduction, we'll just skip it. And I am Manish, Apurva Thakur and Manish Kumar. We are practicing advocates in Delhi. He has 15 plus years of criminal litigation experience and is proud to be a We Legal mentored student of POCSO Torchbearer batch, which really inspired him to talk with me about this session. And I, heading Logistics Foundation and having a varied profile by being an assistant professor in DU, IP, and Jamia alike, keep innovating and thinking about how we can spread legal awareness better. And that's why I thought if nobody is doing such a thing, let's celebrate the first decade of POCSO. So over to you, ma'am. Okay. Good evening, everyone. Apurva and Manish have said enough for me. So I'm not up to that level, but fine. I know I am doing some work in the field of this sexual harassment for women and children, which is happening around against, and we want to fight it out because I don't say that sexual harassment doesn't happen to men or anyone else. It happens with everyone. And it can happen tomorrow again with everyone. But yes, right now, because we are talking about a particular law, and the main reason of talking about this law is the today's day. 10 years back, this was the day 14th November 2012, when this particular law, the protection of children from sexual offenses, came in force in India. And this was the first law which exclusively talks about the sexual assaults or offenses against children in India. Before that, we didn't had any such law at most of the places. In many of the remote areas, even today, people don't know that there is any such law, and they take it as a practice to harass children. And it happens around in some old type of schools and all. Still, it is happening. Including some religious places at a place different, but this is happening. And we feel the most important reason why it is continuing even after having law in force for last 10 years, aware of that there is any such law, or what we are doing is wrong, should not be done, or if I have done something, it will result in something this much harsh. So most important thing is, though we many of here in the session and we three are from legal background, but let me tell you with our experience, making a law will not solve any problem. We have enough laws in country, kept in the books, good for judges and lawyers, but for public at large, making a law and keeping it in the book, it will never help any one of us till we know what that law says. And when we talk about sexual offenses, especially children, the awareness is the key.
That is what we want to focus on. Awareness is the key. I am not going for such awareness sessions to the court people, to the lawyers, or to the judicial officers, to the police officers. Not required, because they all will come in picture when the incident has already happened. Incident happened, child is in trauma. Even if you hang the other person, who has committed the offense, it will not help that child to come out from that trauma. So all of us are required to work towards awareness for prevention of offense. We don't want what will happen after the offense. After the offense, you punish the person, absolutely fine. That is one part of it. But if we work towards that offense should not happen at all, that's the most important thing. That's the most important thing, because ultimately the child who is facing all this, that child should grow up as a proper normal human being. If child has undergone all such issues, even if you punish the person, that will not help. At least to that child to grow up as a good human being. And we have seen in our experience, and as per the government records also, it shows that many children who have faced such type of sexual offenses in their childhood, they grow up and they become more violent. And many of them have that thought, since it happened with me, I will also do it. So those things should not happen. So our work, every one of us, first important thing is to work towards prevention of such offenses. Later on, I agree, authorities are there and they are really working very nicely, but authority will come in picture when incident happened. The first thing is stop that incident should not happen. That's the first thing. And the second important thing, which I would like all of you to please work on it, is by chance incident happened. More than half of the people who are connected with that child, whether in a form of parents or whether in a form of a teacher, the first, don't talk about the subject. Happened, keep the child aside. Maximum, sometimes people go for some counseling, that too very rare. Close it, because most of the incident are happening through the known people. Many times it's the family members involved. So most of the time we think, oh, it should not go out of the family. What society will say, what society will look at us, and our this whole prestige will be in question. Don't look at that, please, because children are more important than my prestige. If my child grows up with a as a normal good human being, that's nothing more than that required for me in life. So my prestige at this stage, I don't think it's that important. So please speak up. If by chance something wrong happened with your child, please come out and report it, because these all authorities, police, court, lawyers, everyone will come much later when the incident happened, and you have to report it. Without reporting, nobody will have any dream that something happened with so and so person and I'll go and help the person. I am a lawyer. In my this 35 years of legal experience, I have seen many women and children close the door. Don't talk about it. Happened has happened. Let's keep quiet. If you will keep quiet, who will come to know that something wrong happened with you, and who will come out to help you out? So please speak up. Please speak up. There are authorities who are serious about taking action. There are very stringent law in India, but we have to use that for our benefit, for our children's future. And that can only be used with the awareness and your boldness to that extent that you are okay coming out and talking about the subject. But I'm very happy seeing here at least few people are there. They think that this subject is a little bit at least seriousness in the subject, so that we should talk about it. Because otherwise, when we use such type of word, the sexual offenses, people will say, no, no, children
children are not required to know about it. It's not required. No, no, it's not their age. Let them grow up. No, this is the time they should know. So it's very good to see you all are here to look at the subject, to understand the things, and to understand your duty and responsibility towards your children, the children around you, and overall society. So very happy to see all of you here, and we are always there to help you out wherever you are stuck on the subject. Rest, Manish and Apurva will take you further what the law says and anything, and I am here. If you want to talk to me or have any inputs from me, I'm here only. Thank you so much, Deepa ma'am. When we go through the session objectives and intended outcome, this is generally a very standard slide in PPTs when there are any trainings or talks. Because Apurva, just hold on for a second. Make it on a slideshow so that it will be more easily visible to everyone. Just put it on a slideshow so it will be. Is this better? No, make it on a slideshow, no? It is on slideshow. Okay. Go here above, slideshow is there. I'll just try again. So, because then it will be visible, picture and all. No? Is this okay? Yeah. Perfect. Very good. Thank you, ma'am. I'm just trying to figure out how to go to the next slide because the budget- Just enter, you will reach to other next slide. Okay, somehow that's not working. Oh. Sorry, I disturbed you. You were going in a Not at all, flow. ma'am, not at all. It was a wonderful suggestion. Because otherwise it's not readable, whatever is written. No? So just go above on this slideshow. Yes, from current slide. Do it from current slide, no problem. Yeah, just click it here. Huh? Why it's not coming? Okay, no problem. Then you carry on. No problem. The session objectives and intended outcome. This is generally, I was saying, it was a standard slide which many trainers and speakers use when beginning their session. The entire objective behind, or the intention behind using this kind of a slide in PPTs is whenever we are trying to humbly impart some kind of knowledge or some hacks or some tips, etc., as somebody who's been there, done that, or either been in the field and knows maybe a little more. There it becomes very important to first streamline the flow so that we do not go all over the place as speakers, which is very easy as a human. Also, so that the joinees or the attendees or whoever views it later as a recording understands what exactly they would gain from the session. So here it's to educate the joinees about basic concepts and terms used in the Act, which is of course the conceptual part, because without understanding the legislation, we cannot go further. And the attendee here would gain some basic awareness about not only the broad structure, legal words and terminologies, which is always a, I would say, complicated issue for many people कि legal words कैसे समझे, terms कैसे समझे, इसके लिए तो lawyer ही चाहिए. So it's not like that. We can decode it as common man being non-lawyers as well. Just that direction is required at the outset. So broad structure, legal words, and the punishments prescribed in the legislation, very important. Now, secondly, we are here to throw light on certain challenges and obstacles in the real life implementation or the grassroots level implementation of the Act. Now, here, whoever is the attendee or viewee or joinee would ideally become informed about how to handle these roadblocks, these obstacles, challenges, and how to smoothly execute the law when required. So, of course, we would प्रे दैट जैसे लोग प्रे करते हैं कि पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल और कोर्ट नहीं जाना चाहिए. दैट्स व्हाट माय हस्बैंड कीप्स टेलिंग कि कभी भी दुश्मन के लिए भी प्रे करते हैं कि भाई वो थाने और हॉस्पिटल और कोर्ट ना जाए. Similarly, here also we pray that POCSO लगे ही ना किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में. However, there's this little phrase I put in here in the PPT that whenever required, if there is such a crisis which happens in any organization or institution, especially
if it's an NGO, if it's a child care institute, a play school, a pediatric hospital, a school, of course, affiliated with CBSE, ICSE, whatever it may be, public, private school, wherever minors or young children are spending most of their time. Right, so there it becomes very important for whoever is managing those institutes, whoever is part of the staff running it, whether they be faculty, whether they be doctors, whether they be social activists, and even like the from the lowest to the highest hierarchy of staff, it becomes crucial for them to at least know the law. To apply something, you need to know it, and secondly, you need to understand where I'll get stuck so that I can execute it. That doesn't mean to manipulate it, to execute it honestly and bona fidely. And third and most important, to discuss the way ahead in near future. Now, in many sessions, what happens, I have observed, he has observed, that there is an open ending, or probably there is not much talk and reading into a futuristic aspect of what we are touching upon. So we'll try in our humble capacity to discuss the way ahead in near future as regards this child safety law. Now that we have completed 10 years of this law, the first decade, so the attendee would ideally gain a futuristic perspective about the act and its long-term objective. Now, of course, that will be a lot of speculation and based on case studies, because none of us here could really predict the trajectory very precisely. Now, taking on from that, Deepa ma'am, would you like to add here? No, continue. All right, all right. So Continue. the international legal regime for child protection becomes important as a background. I will just touch upon this slide for just a few moments so that historical context and background is provided. It's quite theoretical, so probably you could just see from the slide and gauge that what exactly it's talking about. For example, when we are talking of any kind of child right or child welfare legislation in our country, it becomes incomplete if we don't mention the CRC. So the UNCRC, as we know, it was adopted in way back in 1989, had certain number of nearly 200 signatories, and there are other UN documents as well on child protection. And what is very important when we talk of child protection, child welfare, child rights, child safety, or we talk of hashtags like child rights matters, all those kind of things, it becomes important not only to talk of sexual harassment, but also, of course, that is a subset, and that's something which is I would say very sadly it's rising, it's on the rise, and that's the reason why certain institutions are formed or talks are seminars are being held, so that people get to know that okay, this is not something jo sirf ghar ki char diwari mein hota hai, though that is also equally unpleasant and upsetting. Manish would talk about his experience here later in a few minutes about how he as an amicus of the court and also as a defense counsel has encountered certain matters of POCSO since these are sessions trials. So how you will talk about it later, how there have been incestuous relations and sexual intercourse, let's say father and a daughter, and it fell into the purview of POCSO, and why there was lack of, I wouldn't say awareness there, of course that is there, but even the victim is not ready enough to face the consequences in terms of relief, is not ready enough to seek proper relief, because many a times that means for the victim to be separated from the family, which is worse if the perpetrator is a family member. So these are those kind of strange situations. Okay, now talking of the international legal regime for child protection, not only sexual harassment, but also when we talk of refugee children and their rights, or when we talk of child labor being prevented, or let's say any kind of humanitarian violation which happens at the time of wars or international crisis that we see, and we have different UN agencies dealing with those. Now there, see, because children anywhere globally are the future of the country, of the globe, right? So that is one segment of population which just cannot be ignored and cannot be overlooked, but sadly it's being understated. And now coming on to the fun part, I would say, because did you knows are always since childhood very fun part for me in any kind of session, that really I feel triggers one's brain to understand कि इसमें से कितना मुझे पता है. ये human psychology होती है, जब हम किसी को did you know बोलते हैं तो सोचने लग जाते हैं अच्छा ये तो मुझे पता है, it's like a challenge. So in did you know or in the fun facts, it's very important to understand that children in Indian population, they constitute a considerable number, 39% of Indian population, and it's growing, it's not a static percentage.
And children have rights not only under special laws, of course, and not only under the general criminal law of the land, Indian Penal Code, but also the what you call the Grundnorm, or the basic bedrock law of the country, which is our Constitution of 1950. Of course, it draws from UDHR of 1948, because that was the historical context when Constitution was framed. Now, children have been entitled to certain protections and rights under special laws for their safety and security. It becomes very strange, I would say, to understand the entire dynamics of it, because to say कि आपने किसी को rights दिए या privileges दिए is very easy, but to actually enforce them and to know that a minor cannot approach the court alone without next in kin or a guardian or a lawyer or somebody who's major, it becomes like, even Professor Upendra Bakshi has written a lot about this. It becomes very difficult to understand the clear dynamics of it कि आपने rights तो दे दिए, पर अब वो rights enforce कैसे होंगे? अब किसी बच्चे के राइट वायलेट हुए, वो जाके तो किसी मेजर को ही बोलेगा ना कि मुझे कोर्ट अप्रोच करना है, या जाके एनजीओ जाएगा तो वहां उसे he or she will expect some help. So that means that entire this practice and philosophy, not only in our country, but I would safely say almost all over the world, कि minors की consent matter नहीं करती, minors के right है, but they are very conveniently shoved under the carpet because उस right के enforcement through a major होती है. Now, these are certain hypocrisies, or I would say double standards. Hypocrisy might be a harsh word, but double standards जो हमारे legal system में inbuilt है. अब कहना आसान है, करना मुश्किल है. आप किसी माइनर को राइट दे दोगे कि आप जाओ कोर्ट में जाके केस फाइल करो, सो ऑफ कोर्स हो सकता है कि हम एक दिन में 100 फॉल्स केसेस देखें. दैट इज आल्सो अ स्कोप व्हिच इज देयर. सो मे बी देयर आर बीन अ लॉट ऑफ brainstorming and rationale of the legislators to limit certain rights of the children to directly approach authorities, especially the courts. Now, around 90% of cases in POCSO, under the POCSO Act, protection of children against sexual offences Act, I would say, इसमें 90% of cases में offenders were known to the victims. अब अगर आप एक्ट का नाम भी देखें, कई जगह है P stands for prevention, राइट? जैसे वुमेन की बात करते हैं, पॉश की बात करते हैं हम, P stands for prevention. However, अगर हम पॉक्सो की बात करें, कई लोग तो बहुत फनीली क्या करते हैं, मनीष has made this observation when discussing the PPT with me once. He said, people, I've seen educated people and even lawyers, judges को तो नहीं सुना ऐसे, पर lawyers भी यूज कर रहे हैं ये टर्म पॉस्को, मतलब somehow they are rhyming it with Costco और पता नहीं क्या, what is going on in their minds. And it's so funny, it's strange, it's upsetting that there are certain nomenclatures because it is made in that way. अब अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से एंड करना है उस एक्ट को कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, और आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बच्चों को बिकॉज वो दे नीड दैट प्रोटेक्शन ड्यू टू बीइंग वल्नरेबल एज अ सेगमेंट ऑफ दैट पॉपुलेशन, तो ना उसे प्रिवेंशन बोलोगे, दैट इज द फर्स्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. और जबकि वो इम्प्लाइड है कि आप प्रिवेंट करोगे, लाइक दीपा मैम वाज राइटली सेइंग कि इंसिडेंट हो ही ना, राइट? हाउएवर यू नीड टू फर्स्ट प्रोटेक्ट देम, कि उन्हें प्रोटेक्ट करो, और प्रिवेंट तो अपने आप इंसिडेंट हो जाएगा. अगर आप उसे उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हो, सेफ्टी दे रहे हो, तो अपने आप इंसिडेंट होंगे ही नहीं अनटुवर्ड. हाउएवर जो अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस है ना, लोग भूल जाते हैं, लोग कहते हैं अरे वो क्या फर्क पड़ता है, पॉस्को होगा ऐसे, द वे इवन पेरेंट्स सीबीएसई की जब बुकलेट्स निकलती हैं स्कूल की, तो कहते हैं हाँ हमें एक मिली थी पॉस्को की, कुछ ऐसे एज इफ इट्स सम बॉल, टेनिस बॉल दे आर टॉकिंग ऑफ, कि कुछ पॉस्को की बुकलेट मिली थी. अच्छा, पढ़ना भी होता है वो. So many parents we have talked to also while framing this PPT and talking about this session, we thought let's just from our friends let's gauge the kind of awareness that urban educated and professional mothers and fathers they have for this legislation. And it's disappointing that it's next to negligible. Even the nomenclature they are not understanding well. Now that is the, I think, centrifugal point of any kind of awareness session, कि पहले आप उन्हें बोलना सिखाएं, कंसेप्ट बताएं, उसके बाद बताएं लॉ ये है, लॉ आपको ऐसे हरास कर सकता है अगर आप रॉन्ग डूअर है, आप एक्चुअली ऑफेंडर है, और हरास तब भी कर सकता है अगर आपने कुछ नहीं किया पर आपने बस विक्टिम का साथ नहीं दिया, बिकॉज दिस इज अ लॉ विच टॉक्स अबाउट बीइंग प्रोएक्टिव. इसमें पैसिव रहोगे आप तो प्रोटेक्ट नहीं होगे. That is one thing which is for granted from first digit and first letter, I would say,
कि A to Z इस एक्ट में ये है कि आप कितने प्रोएक्टिव होते हो, हाउ एक्टिव आर यू इन कोऑपरेटिंग विद द स्टेक होल्डर्स एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द विक्टिम ऑफ एनी against any sort of further harassment or trying to prevent any such incident on your premises or organization, whatever the case may be. We don't know, factually it can be different for every organization and institution. पर ये सिर्फ अवेयरनेस पे आके खत्म नहीं होती, ये इस पे होती है कि अवेयरनेस के बाद आपने उसे इंप्लीमेंट कैसे किया, अवेयरनेस को 4 लोगों को बोला, अपने प्रेमाइसेस पे किसी को सेंसिटाइज किया, सबऑर्डिनेट्स को इसके बारे में बात की, पोस्टर्स लगाए, कुछ क्या किया इसके बारे में. सो दैट इज समथिंग विच आई फील जितने लोग बोले उतना कम है. So around 90% of cases, now this is so appalling, इसमें बच्चों के जो विक्टिम्स होते हैं, बच्चों के साथ जो गलत काम किए जाते हैं, दुष्कर्म जिसे हिंदी में कहते हैं, तो ऑफेंडर्स वहां पे नोन होते हैं टू द विक्टिम. दे आर नॉट स्ट्रेंजर्स, या रिलेटिव्स होंगे, या टीचर्स होंगे, या इट्स वेरी सैड, है ना, या कोई बस में जा रहे हैं तो बस के कंडक्टर ड्राइवर हो सकते हैं, डॉक्टर है वो हो सकता है, एनीवन. एंड इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मतलब जेंडर न्यूट्रल है, और यहाँ तक बच्चा भी हो सकता है. अक्यूज इस पे बात करेंगे जब सेलिएंट फीचर्स पे आएंगे. और आई विल जस्ट क्विकली रन थ्रू दिस स्लाइड कि जो स्टेट्स मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट हमें पता है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश डेफिनेटली, वो हरियाणा, दिल्ली, मतलब दिल्ली एनसीआर के रीजन्स, और एमपी, महाराष्ट्र, यहाँ पे सिर्फ केवल इन्हीं स्टेट्स में, प्रदेशों में आप देखिए 51%, 51% पॉक्सो केसेस in the entire country as per NCRB come from these states. And also I was going through this data provided by Kailash Satyarthi ji's organization, जो कि एक फंडामेंटल अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, इज नोबेल प्राइज विनर, जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस, ये लिखा हुआ था उनके साइट पे भी, पीडीएफ आप जाके पब्लिक डोमेन में आप डाउनलोड कर सकते हो. दिस इज नॉट, these are not facts we have concocted or anything, it's from public domain. So largest number of cases registered under POCSO in 2021, abhi latest jo hum data agar bataएं, was in UP, followed by Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka. Deepa ma'am, I believe you are from Karnataka, if I'm not wrong, please correct me. No, I'm not from Karnataka. Okay. But yes, right now I'm based out of Bangalore. But otherwise I'm from Rajasthan. All right. So this is true ma'am कि साउथ में बहुत ज्यादा पॉक्सो के केसेस होते हैं या पॉक्सो की रिपोर्टिंग होती है, because there is a difference. As far as my understanding goes, reporting is more. Right. Because cases तो सभी जगह हो रहे हैं, but the thing is, जो रिकॉर्ड हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलते हैं वो होते हैं रिपोर्टेड केसेस के बेसिस पर. Now there are many unreported cases. If you look at if you go to MP और राजस्थान, आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, बहुत सारे पॉक्सो ऑफेंसेस हो रहे हैं, बट रिपोर्टिंग नहीं है, तो किसी को पता नहीं पड़ता, तो वो रिकॉर्ड में आते भी नहीं है. यू आर नॉट गेटिंग देम इन अकाउंटिंग. तो सदर्न स्टेट्स में रिपोर्टिंग इज मोर. दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज. इवन एक जनरल नंबर, यस, दिस मेनी नंबर आर हियर. एक जनरल ग्राफ भी देखा जाए मैम, तो साउथ में आप देखिए, जैसे अभी पीछे कोविड में भी इतने कोविड केसेस हर जगह हो रहे हैं इंडिया में, पर कहीं हशप करे जा रहे हैं, और वहां पे रिपोर्ट अवेयरनेस की वजह से शुरू से ही इन्होंने एक रखा हुआ है, इतने फिगर्स हैं, जब एक्चुअली डाउन होंगे हम तभी डाउन करेंगे, ये नहीं कि हम मैनिपुलेट. सो दैट इज देयर, यस, व्हिच इज आई वुड से encouraging. It's good rather, because without reporting we cannot take advantage of whatever is there in my favor. Absolutely. In fact, interestingly enough, it's not on the slide, of course, because it's a freehand discussion, I would say. So I would take the liberty of, we recently went and we had some time off in Saket Court after certain matters. So we thought, chalo break lete hain. And we went and watched Ayushmann Khurrana's movie, Dr. G. And just देखिए Dr. G, उसमें towards the end of the movie, in fact, right after interval, there's an entire narration of how an underage girl is impregnated by a reputed doctor, and then what follows. So then I was telling him, I don't know how an adult's brain functions. So that is what the watching the movie, I was telling him, ये पॉक्सो है. So he said, yes, of course. This is the concept. Because हमारा thought वैसे ही जाता है. Yes, he could not even enjoy that entertainment properly, poor thing. So I mean, it had a very strong message, that movie. Right, it has, no doubt.
So now when we talk of the Indian legal scenario for child rights, as I said, it's not only sexual harassment that we touch upon. Of course, this session is basically on POCSO, but there are different plethora of legislation, as ma'am said, कि हमें law की कमी नहीं है इंडिया में, पर ये है उसका एग्जीक्यूशन है, उसकी समझ है, उस पे स्पेशलाइज जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं वो है, जो इस तरह के अवेयरनेस अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में होते हैं, छोटे बड़े स्केल में, वो है। सो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, 1986। आप देखिए काफी पुराने पुराने लेजिस्लेशन है यहाँ, और आप वर्ड्स भी इसके देखें, जिनको लॉ नहीं आता वो भी समझे। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, अब लॉजिकल बात है, जो चीज प्रोहिबिटेड है हम क्यों उसे कर रहे होंगे और कैसे उसका रेगुलेशन होगा। दैट मीन्स कि जो लेजिस्लेचर ने नाम रखा है बड़ा सोच के रखा है, दिस इज समथिंग विच हैज टू बी अंडरस्टूड, टू वी हैव टू बोर्ड दैट ट्रेन ऑफ थॉट कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन है। प्रोहिबिशन हर जगह पॉसिबल ही नहीं है, तो अब क्या करोगे कि जो हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स है उसमें तो, जैसे एज अ लेमैन पर्सपेक्टिव में मैं अगर बताऊं, जो हैजार्डस वर्क प्लेसेस हैं उनमें तो आप प्रोहिबिट कर दोगे चाइल्ड का जाना। और चाइल्ड, हर लेजिस्लेशन में चाइल्ड की डेफिनेशन अलग है, कहीं बिलो 14 है जैसे लेबर लॉज में, फिर यहाँ पॉक्सो में बिलो 18 है, कहीं बिलो 16 है अगर हम जेजे की बात करें। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, अब जहां प्रोहिबिट नहीं हो सकता वहां क्या करोगे? फिर वहां बेटर है कि अब वो अंडर द टेबल डीलिंग्स की तरह वो इलीगल वे से चलता रहे, उससे बेटर है कि हम रेगुलेट करें। लॉ के स्कैनर में आएगा, रडार में आएगा, तो इट विल बी बेटर, जिसे कहते हैं कि regulated, or let's say a better word for it would be handled. राइट। फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का। फैक्ट्रीज में आपको पता ही है बहुत बच्चों के शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऑफ कोर्स सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है, वो अलग बात है कि एक एक्ट के साथ रीड विथ होता है बाकी एक्ट्स भी। अगर मैं अभी पॉक्सो की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है एफआईआर में आईपीसी नहीं लग सकता। मनीष जी बताएंगे इसके बारे में ज्यादा, वो क्योंकि जब सीनियर सामने होते हैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ माइंस एक्ट of 1952, that's also, आप देखें अगर लेबर लेजिस्लेशन उठा के, if a law student is viewing this, तो आपको पता होगा, अब नहीं भी हो लॉ के तो लेबर लॉज जो हमारी कंट्री के होते हैं, मैनुअल आता है प्रॉपर। फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है, उस पर थोड़ा अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं, अब कोड्स अलग अलग आने वाले हैं, एनफोर्स अक्टूबर में होने वाले थे, अभी तक पूरी तरह से एनफोर्स नहीं हुए वो कोड्स, सोशल सिक्योरिटी के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये सब है जो आप आराम से पब्लिक डोमेन में लेबर मिनिस्ट्री के साइट पे जाके कोई भी अवेयरनेस अपना ले सकता है इसमें। फिर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट है। अगर मैं थोड़ा रिसेंट लेजिस्लेशन की बात करूं 2005 की, पॉक्सो तो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसके हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके 10 साल अभी आज हुए, वो तो है ही है 2012 का। बाकी मिनिमम वेजेस एक्ट भी लेबर से ही रिलेटेड है। पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, ये इसमें थोड़े पेनल इम्प्लीकेशंस है, क्रिमिनल लॉ के अंडर ही दायरे में ही आता है ये, एंड इट्स रेड विद आईपीसी व्हेन द अक्यूज्ड इज अ माइनर। और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है 2009 का, कि हर बच्चे को जो प्राथमिक ये है शिक्षा है, वो प्राइमरी एजुकेशन है, वो दी जाए फ्री, और कंपलसरी है कि देना ही है। और पेरेंट्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटी भी अमेंड करके दे दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो लॉ में सब कुछ लिंक्ड होता है। लॉ में अगर मैं अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह, जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, ज्यादा नहीं है, उसे अगर मैं शेयर करूं तो आई कम टू वन लिटिल कंक्लूजन कि इन इंडियन लेजिस्लेशंस, इन स्पेशली आई हैव नॉट रेड टू मच ऑफ, थोड़ा बहुत कॉमनवेल्थ लॉ पढ़ा है, थोड़ा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पर जितना इंडियन लॉ में हम लोगों की पकड़ है उस हिसाब से मैं उतना कह सकती हूँ एज अ लिटिगेटर ऑल्सो, हर एक चीज लिंक्ड है दूसरे लॉ से। आप लॉ में कह ही नहीं सकते कि कंपार्टमेंटलाइज है, मैंने सिर्फ आज एक एक्ट की बात की, मुझे क्या फर्क पड़ता है बाकी एक्ट में क्या है। वी कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कैजुअल एटीट्यूड। और जब व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड any legislation or regulation or circular or notification by any department or ministry, हमेशा हम किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं उसे या समझते हैं। इट्स नेवर आउट ऑफ द ब्लू, इट्स एन यूनिवर्स, और आई वुड से ओशन ऑफ नॉलेज। तो एक दिन में तो नहीं पढ़ा जाता ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से हम लीगल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं अवेयरनेस लेने या उनसे कंसल्ट करते हैं। दैट इज द रीजन, नहीं तो सब कुछ ही कहते हैं कि रेलेवेंट ही नहीं रहता, फिर तो लीगल प्रैक्टिशनर्स के पास लोग जाते ही क्यों। पर उसमें भी कई बार लोग कहते हैं ना, यार इसने सही एडवाइस नहीं दिया, या इस लॉयर ने ऐसे ढंग से नहीं बताया, क्या पता हमें पागल बना रहे हैं, ये कर रहे हो। नॉर्थ इंडिया में बड़ा कल्चर है, साउथ इंडिया का मुझे नहीं पता, पर नॉर्थ में लोग बहुत शक भी करते हैं कि आप किसी के लिए अच्छा करने जाओ, इफ यू आर ट्राइंग टू डू गुड फॉर समवन, you might, it's very upsetting that you might as well be on the receiving end of some negativity, and people might think, oh, why are you doing so much good for someone? So ये भी प्रो बोनो एक्टिविटीज को बड़ा शक से देखा जाता है। जैसे कि हम फ्री सेशन कर रहे हैं तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या मोटिव है। मोटिव बस अवेयरनेस है,
और अगर ये समझा जाए, सोचा जाए, तो वी आर ऑन द सेम पेज। ये चीज है। और कोई आपको तभी उल्लू बना सकता है, बेवकूफ बना सकता है, आपका फायदा उठा सकता है, अगर आप खुद कुछ नहीं जानते। तो अगर आप खुद सशक्त हो जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो बोनस ही मिलेगा जिससे ज्ञान मिलेगा, right? That this is the, I think I would say, long story short of getting any kind of professional knowledge. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एनी पेनल लेजिस्लेशन इन इंडिया, अगर हम देखें कोई भी हम क्रिमिनल लॉ उठा ले, जैसे पॉक्सो एक्ट एक क्रिमिनल लॉ ही है, बहुत ड्रेकोनियन लेजिस्लेशन है, बेल्स की भी बहुत इशू होती है, उस पर बेल मिलने की, सर बताएंगे ये चीज। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनी पेनल लेजिस्लेशन इन इंडिया अगर हम ब्रॉडली देखें, दीपा मैम ने भी अपनी जो ट्रेनिंग्स कराती है वो बहुत ब्यूटिफुली शी पुट्स इट इन पीपीटीज, कि डेफिनेशन से स्टार्ट है, ऑफेंसेस हैं, उसके बाद पनिशमेंट्स है और प्रोसीजर है। पहले हम पनिशमेंट पे नहीं कूद जाते, पहले हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं, कीवर्ड्स देखते हैं, फिर समझते हैं अच्छा भाई ऑफेंस क्या है, इसमें रॉन्ग क्या है। ऑफेंस हम क्रिमिनल वर्ड में यूज करते हैं, सिविल लॉ में हम रॉन्ग डूइंग्स या ऐसे रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, वहां राइट्स की बात हो रही होती है, यहाँ क्राइम की बात हो रही होती है। उसके बाद आता है अच्छा ऑफेंस कर दिया अब क्या होगा, अब चलो पनिशमेंट होगा। यहाँ तक तो बात सब्सटेंटिव लॉ आ गई, थ्योरी आ गया, पर उसके बाद नो व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, प्रैक्टिकल इसका क्या करें। अब मान लो ऑफेंस हो गया, पनिशमेंट हो गया, कौन सी कोर्ट सुनेगी, कैसे एविडेंस होगा, कौन कहाँ जाएगा, कितनी कॉपीज कितनी चीजों की लगेगी, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें प्रोसीजर में आती है। किसको बताओगे, रिपोर्टिंग कौन है, एक्शन कौन लेगा, कैसे प्रोसेस चलेगा, उस पर भी स्टेजेस पे भी हम बात करेंगे। दीपा मैम, वुड यू लाइक टू ऐड हियर? Yeah, absolutely right. Because that is where I said we need awareness. Because suppose I am ready to talk, something happened with me, I am ready to talk, but कहाँ, मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, कौन अथॉरिटी है। आई अपनी अक्ल के हिसाब से आई गो टू अ पुलिस स्टेशन, पुलिसमैन विल से नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मैटर नहीं है, आप वहां जाओ, ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप वहां जाओ। आप एक लॉयर के पास गए, एज अपूर्वा ऑलरेडी सेड दैट हम लोग बहुत शक्की मिजाज वाले हैं, सारे लोग बहुत जल्दी से किसी वकील पर भी भरोसा नहीं करते हैं, एंड probably that is natural. With our experience, yes, at many places the lawyers have not reached up to that level of integrity, so लोगों को थोड़ा डाउट रहता है। तो वो सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ही अवेयरनेस है। दैट इज व्हाई सच सेशंस आर इम्पोर्टेंट, जहां पर एक लेमैन जो लीगल बैकग्राउंड से नहीं है, एटलीस्ट उन्हें ये पता पड़े कि अगर कुछ गलत हो गया बाई चांस, पहली बात तो हमें होना नहीं है, होने नहीं देना है, लेकिन अगर हो गया तो मैं कहाँ जाऊं। तो आपको ये पता है कि ओके, ABCD, दीज आर द अथॉरिटीज वेयर वी कैन गो। सो वो पता तो होना चाहिए। दैट इज व्हाई सच सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। So please be here, concentrate here what we are sharing with you. It's basically to give you the way out, how to manage the things if something wrong happens, right? Yeah, Apurva can continue. थैंक यू मैम फॉर एडिंग दैट इनसाइट। कई बार क्या होता है, हम बोलते रहते हैं, हम अगर रिस्पेक्ट नहीं करें जो बाकी लोग हैं, कितना नॉलेज हर एक इंसान यहाँ कैरी कर रहा है, आप तो डेफिनेटली, बिकॉज वी आर लुकिंग अप टू यू फॉर दैट। पर जैसे रितु मैम है यहाँ, शी इज द प्रिंसिपल ऑफ मेनी इयर्स नाउ इन लीडिंग स्कूल ऑफ रोहतक विच इज वेरी वेल नोन। तो उनका खुद का एक्सपीरियंस भी उतना है कि वो एज अ ज्वाइनी, तो मैं तो उनको कहूंगी लास्ट में टू शेयर सम वर्ड्स ऑफ विजडम इफ शी कैन spare some time. Okay, so we'll continue. I think Manish would pick up from here regarding child sexual abuse and POCSO. Thank you, Purva. Slide number 9. Oh, thank you. So we have discussed a lot what is POCSO, how it came into force, and what is it and what is that. Now we should know what are the salient features of this POCSO Act. Salient feature of the POCSO Act that it applies to whole of India. Earlier we had an exemption of Jammu and Kashmir. Now this act has made it gone away. So this act applies to whole of India. This is a special law. Special law means that it has application and overriding effect over other laws. If anything has been explained in this act, it means that will be covered by this act. In any case of ambiguity, will covered by CRPC or IPC or other act. So if anything has been explained in this act, it will override any other act. It applies only to sexual offenses, nothing else. Since it is a special law, it has been created considering that sexual offenses are on rise in respect of children. Therefore, it applies only to sexual offenses, and for other offenses, we have to go to Indian Penal Code. Many other important thing and most important thing is that law of limitation is not applicable in
POCSO cases. Anything which has happened, suppose a case is reported in 2022, which relates to an act which was committed in 2015, then it can be reported and proceeded according to law. In that case, law of limitation will not be applicable to this act. But there's a catch in this thing. This thing would be applicable retrospectively since 14 November 20. 14 November 2012. Any case reported before that will not be covered, and it will not be reported or recorded. Anything happened after 14th of November 2012 will be covered by this act, and no law of limitation will be applicable to those acts. A child who is now an adult or whatever age, he can report the matter to the police, and action will be taken in terms of that reporting. It covers another thing, that it covers all sexual offenses related to the person below 18 years of age. Earlier, there was in Juvenile Justice Act, the distinction was between 16 years and 18 years, a boy below 16 years, girl below 18 years. There was that distinction, but however, that distinction has been done away with recently in by this act. Now the age is 18 years in all the acts: Juvenile Justice Act, POCSO Act. So the age. No, ma'am would like to add. Would you like to add something? Just to you're fine. What you're telling is the only thing is the age of 16 to 18 is in POCSO Act. It is still 18. The only amendment happened is for the heinous crime. Yeah. If it is a heinous crime, Yeah. then the age is 16 to 18 will be considered by Juvenile Justice Board, and they will think they will take a call whether this child should be considered as an adult or as a child. No, Rest the 18 years is the age limit to be for any person to be considered as a child. For that purpose, I would like to make it clear that you are right. The age of that age we were considering is, if we read IPC, anything done by a child below 12 years of age is to be considered. Below 7, it's completely exempted. 7 to 12, it is to be taken into consideration whether that person had the knowledge of what he was doing. There was a case that child said to a child who was around 12 years or 11 and a half. He said to the person that by taking a knife in his hand, that I'll cut you into the pieces. I'll this चाकू तेरे पेट में मार के तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा. उसमें it was said that this child knew what he was saying and he knew what was the action. So there was a lot of hue and cry, agitation, that a person of the child can understand what is the act he is intending to commit. Then why should not we consider that age? Then after some time, the debate over biological age came up, that a person who attains the age of maturity at 13 years or 14 years should be considered as a grown up. So legislation said that no, nothing doing, we consider a child below 16. They made classification recently after that Nirbhaya case done by 16 to 18. If he understands what he is doing, then he will be treated as an adult. In that case, they made that distinction. However, for offenses related to child, we will consider age of 18, and age of understanding is to be taken heinous, simple and petty offenses 16 to 18. This act is a gender neutral law. Earlier, when we were dealing in IPC offenses, we were only considering female offenses. We were not considering any offenses which has been committed against a boy or a male. This act made it clear that this is a gender neutral law. Any sexual offense committed against any child, be it a female or male, will be covered under POCSO Act. And another interesting thing is that by this act, it can be said that a child can be an accused. As ma'am has said, 16 to 18 years, many offenses are nowadays being committed by juveniles. So child can be an accused in this act. He can commit a POCSO case. He can do those things. And non-reporting is an offense in this act. By non-reporting, we can say that the act says any person who comes across any incident of any sexual offense against a child has to report the matter to the police or to proper authority. If he fails to report, then he can be made liable and he can be punished accordingly to the, I think, minimum 6 months imprisonment is prescribed for that person for non-reporting. And under POCSO Act, another thing which has been done, this is a controversial point. Under POCSO, death penalty can be imposed. I was reading
it is controversial, as I read certain articles or certain books wherein Lord Macaulay, while drafting IPC, he prescribed punishment for rape around 7 years or 10 years. In debate, he was asked in question, okay, sir, you have created death penalty for certain offenses. Why not for rape offenses? Such a heinous offense against a person's body, you tarnish his reputation and anything. So why have you not prescribed death penalty for these offenses or for rape? Lord Macaulay said that I wanted to prescribe death penalty for those offenders, but had I prescribed any death penalty for those offenders, I would have taken another life of the girl. The person will not hesitate to kill the victim. So, in order to save the life of the victim, I have prescribed imprisonment up to certain years so that life of a person can be saved. We have seen in the past the person committing the offenses have either burned the child, killed the child, murdered the child. If he is lucky enough to be alive to report, then in that case the problem is solved. But prescribing this punishment of death or imprisonment for whole life is a question of debate in recent years. Many people are saying that you have prescribed life imprisonment, remainder of life. So there is no chance of reformation. Since we are running on reformative theory, we want to reformate the offender. If you prescribe a minimum punishment of life till remainder of life, where is the chance of remorse? How can you ask him to mend his way? How can you ask him to enter into normal society? So this is a debatable question which we will talk in the gray areas. We have the way ahead, since a lot of things are going on in this, and presumption of guilt is one of the important things. Accused is the person who has to prove his innocence. Initial burden is cast upon him that if you have committed this act, it means it is upon you to prove that you have not committed this act. This act prescribes and presumes that this act has been committed by him. इसमें इससे पहले कि स्लाइड चेंज करें मनीष, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी. जेंडर न्यूट्रल लॉ जहां लिखा है, अगर आप लोग स्लाइड देख रहे हैं, जो भी हमारे सेशन को व्यू कर रहे हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉ में आप नॉर्मल गूगल सर्च करोगे, हम ऐसे कहते हैं जब कोई फॉर्म फिल करते हैं, सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जैसे कहते हैं थर्ड जेंडर है. नहीं, जेंडर मल्टीपल है. आप देखो, अगर आप गूगल करके देखोगे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. तो इसलिए ये समझना कि ये लेजिस्लेशन बहुत ब्रॉड है. सिर्फ ये नहीं कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर को कवर करता है. It's not like that. That is point number 1. Point number 2, which I would like to add here very humbly, is जब हम नॉन रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो नॉन रिपोर्टिंग ऑफ एन ऑफेंस पब्लिक के लिए पनिशमेंट कम है, पर जो कोई मैनेजमेंट में है, इंस्टीट्यूशन के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, या जहां बच्चे जिन प्रांगण में हैं, उनके जो इंस्टीट्यूट ओनर्स हो गए, अथॉरिटीज हैं कंसर्न, वो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए डबल पनिशमेंट है. That is one thing I would like to put across. Yes, Manish. So there are certain key features of the POCSO Act. Age of consent. Earlier, the age of consent was 16 years. It was raised to 18 years. Now, anything which we say that a lot of time defense has been taken, that the act was consensual one with the person with whom it has been done. But now that defense is not available to anybody. Anything done with a person below 18 years of age will make you an accused in this POCSO case. Reporting is mandatory, as I have told earlier. Special courts have been established for the purpose of fast trial of the cases. Now, this itself is a problem in many states. What they have done, they have not created special courts like in Delhi. Recently, this is a recent development. For certain cases, there are special courts. Special courts are those courts when the case takes up fast track speed. Means you have to come day to day for your case. They'll not give you more than 10 days date. Since there is a time constraint or time mandate in POCSO case, that is of 1 year. But we have seen in many cases it takes years and years and years to decide the case. I myself have done certain cases when I was in DLSA, legal services. At that time, those cases were on prosecution evidence stage. Today also, when I check the status, those cases are on prosecution evidence stage. They have not come ahead or they have not moved further. They are there where they were earlier and they are there still. So there are many things which takes or which delays the matter, but these special courts were meant to fast track the fast pace or
increase the pace of those cases, but that has not happened. And many states have not established the special courts as yet. They have overburdened the already existing sessions court, and they are looking after these matters, and they are not able to give time or not able to listen properly those cases. So though it is a key feature, but it is still under process of development. And what is this? Doctors preparedness. Special procedure has been allotted or allowed or provided under POCSO. Any child who's a victim has to be mandatorily examined by the doctor, preferably female doctor. If female doctor is not available, then the doctor who is on duty, but preference is to be given to female doctors. And doctor has to examine a child as per CRPC. Now, this act talks of child sexual abuse. These cases are one of the most underreported case because of social stigma. People don't come forward, as Apurva has rightly said in the beginning, that there is stigma to report these cases. People will say that what society will think of it, what peoples will think of it, and that's not the case alone. We'll have to take that the trauma upon the child, of thing the child undergoes, the trauma which child undergoes, is the factor which parents consider to report, and they even don't know where to report. They first talk about themselves. They suppose it happens in school. When they reaches the school authority, they try to hush up the cases. Many cases are there. They try to hush up. Few months back, I gave consultation in a case. They faced a case in such a matter. The child was sexually exploited by a teacher. The mother reported the matter to the police or to the school authorities. They themselves started investigating the case. She said that why, and they said that nothing has been done by the teacher. Nobody has said anything against him. So what, we are not proceeding or we are not doing against that person anything. They start investigating the case. So the mother of the child came to the school, made a lot of hue and cry. The school authorities got in panic. They said, what is to be done? They called us that what is to be done. So we said that you have to report the matter to the police. Let it be as it is. Police will solve the case. You are nobody to investigate the case, to pass a report, or to call the child to school to report the matter to you. Proper authority is police, as you say, that is Juvenile Justice Act, special police, juvenile police unit, SGPUs have been established, or the local police who deals with such cases. They have to be reporting the matter. They will look after that, and it is mandatory reporting that they will say. They can't investigate by themselves, but they can't pass anything or any judgment by themselves. Child sexual abuse is a hidden crime, as Apurva has said, that many a times the victim is abused by the known person, be it a relative, be it a what we say, conductor, tuition teacher, or somebody in the neighborhood. It is done by those persons. Since it is a heinous offense, it affects the mental faculty of the child. Once a scar is made over that innocence of the child, it takes time to overcome that burden. And it's a taboo to talk. Nobody wants to talk about that their child has been sexually abused by any person, or this child has faced any such problem anywhere, either in school, either at home, or anywhere else. Now, why POCSO is to be implemented? As Deepa ma'am has rightly said in the beginning, that prevention is better than redressal. I was telling one of my clients that Apurva said that court, hospital, and police station, भगवान बचाए, इनके चक्कर कभी ना लगवाए. आपके साथ एक बार जो इंसिडेंट हो जाता है, we are nobody, we can't feel the pain they go through. We to just go and argue our case, but the client was saying, सर इतनी देर हो गई, जज नहीं आया, क्या करेंगे? मैंने देखो, अब आप आ गए हो, ये तो आ गए हो, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते. जज छुट्टी पर है, आपका केस लेट आ रहा है, आपके बाकी लोग नहीं आए, तो वो ट्रॉमा रहता ही रहता है. इससे बेटर ये है कि इट शैल बी प्रिवेंटेड. पहले ही अगर वो हो ही ना, देखो हो ही ना तो शायद आई एम एग्जैजरेटिंग द फैक्ट, होते तो ये हैं. अब होते तो हैं तो आप क्या कर सकते हो?
तो उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन रिडक्शन। हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? पॉक्सो एक्ट में एक जो बात कही गई है, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द एक्ट, उसके तहत you can contact the persons, as Deepa ma'am provide the training to schools. It's a mandated. We do this work. You contact the person to provide training, what is to be done, what is not to be done. You have to frame a protection policies. You have to watch the employees employed in the school. You have to watch the peoples. You have to see the conduct of the child. So we need to take steps to prevent for better redressal. Since law is stringent, in fact, I can say this is a draconian law. Since I'm a defense counsel, I can say this is a draconian law. Once you get into trap of this act, you cannot get away with it. It's very difficult to get bail. They don't even listen to your bail application, just throw it away. Okay, get lost, we don't want to hear about it, though not in this sense, but they say, okay, please, we don't want to hear unless the victim is examined. Since the person is only the victim who has been examined, and once he gives an evidence against you, it becomes very difficult for you to get bail. You can't get bail. And awareness is the only thing which can deter the potential offenders. That is why the Ministry of Child and Women Welfare or the ministry or this act itself says that we need to create awareness through public media, through print media, through television, through awareness programs, workshops, and many things. We need to promote these things. And lack of awareness is one of the biggest reasons. And recently, in the recent trend, I read just today, Delhi High Court has said that this law was meant to protect the child. However, it is being used against the child in case of romantic relationship between the child. One of the family, especially of girls, they feel that this boy is into a relationship with our daughter. It means he has committed certain act. We need to report that case. In the past, a case in Bombay, Maharashtra has happened, wherein a boy was roped in as an accused in a POCSO case. He said that I did not did anything and nobody is listening to me. The parent of the girl reported against that boy. Police was making investigation against him. He said that I have not done anything wrong, and though they are not trying or not ready to listen to me what I'm saying. That boy I think had made a video and uploaded over YouTube or as a social media platform someone. So he said that nobody is trying to listen to me. So this law, which was made to protect the child, ironically is being used to harass that very child. One 18-year boy, below 18-year girl, one is victim, and one 18-year below is accused. That's very ironic that how we will protect that boy. And earlier, the child sexual abuse was not a serious concern. It was not talked about. Earlier, the child abuse was not even mentioned in IPC. It is after that, since we are signatory to UN convention, we made this act and made a special law wherein these offenses find mention. Ma'am, we see you've raised your hand. Yes, please. Yeah, just want to add on what Manish is talking about. About this recent judgment of Delhi High Court, and several other courts have also observed this thing, that when there are two are in romantic relationship and both are minors, the boy is in problem all the time. So actually it should be for both. They both have done offense if it is said to be an offense, right? But the problem is the factual situation. The police don't have any option with them. If parents go and go to the police station, they ask, my daughter is missing, the first question will be, what is the age of the girl? If you say less than 18 years, police can't do anything because they don't have any other law available to put a person inside. So they will immediately apply this all POCSO provisions, and the boy is life of the boy is gone. Yes. So agreed, this is one gray area which is supposed to, it should be looked into, but till the government looks into it or any amendment we expect it should come, the very important thing is when we are going for such type of awareness program, we should definitely talk to children and make them aware, look, if you do all these things, you will also be in a problem. Don't think only law is there to support you. But if we make the boys and the girls both aware of this, that when you go or run away from home with that thought of bahut pyar hai aur shadi karenge and all those things, so please be aware. Abhi puri life hai uske liye.
as of now, if you will do, you both will be in a problem. So at this point of time, when we have this law and there is no option or no way out in between to deal such situation, the only option is to make them aware. Please don't do it, because this will create more problem for you, because law is very strict. Yes. Thank you. Carry on. तो जैसे कि मैम ने कहा, अवेयरनेस इज द की. इफ अवेयरनेस इज टू बी स्प्रेड, वी कैन कंट्रोल दिस एक्ट और दीज एक्ट्स. जैसे कि मैम कह रही है, अवेयरनेस से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं. और सीबीएसई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीबीएसई सर्कुलर के अकॉर्डिंग देयर इज द मैंडेट दैट वी नीड टू प्रोवाइड मैंडेटरी अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स. तो जब तक अवेयरनेस कराएंगे, जैसे कि मैम ने कहा, क्योंकि ये लॉ है नया, 2012 से पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है. अगर कुछ हुआ भी होगा तो इग्नोर कर दिया गया वो. अब लेकिन 2012 के बाद जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई और 18 साल से कम के बच्चे अगर इन्वॉल्व होते हैं तो दे विल लैंड इन अ सूट. तो करना पड़ेगा. नाउ अब इतनी बात तो होगी कि भाई कम ये है वो है, आप इस पर रिपोर्ट करो, वैसे रिपोर्ट करो. तो कंप्लेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या रहेगा पॉक्सो में? वी नीड टू फाइल अ कंप्लेंट टू पुलिस. अब जैसे कि सीआरपीसी कहता है, अगर आप ओरली देते हो, वो राइटिंग में पुलिस लिखेगी, वरना वो तो मैंडेटरी है कि उसको पुलिस को राइटिंग में लिखना ही पड़ेगा और उसको रिपोर्ट रजिस्टर करनी ही पड़ेगी. इसके साथ साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पुलिस के ऊपर है, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और जो उनकी जोनल स्पेशल कोर्ट होती है, ये वहां विद इन 24 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ये वहां भी रिपोर्ट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि बस थाने में लिख दिया और कुछ नहीं हुआ. ड्यूअल चेक किया हुआ है कि आप ड्यूअल के ट्रिपल चेक, थाने में गए, आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे गए जो एरिया की है, और आपने स्पेशल कोर्ट में भी उसको रिपोर्ट की. पुलिस की ड्यूटी है ये. अब उसके बाद जितनी जल्दी हो सकता है विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी चाहिए उसके बाद, वरना अगर जल्दी रिकॉर्ड नहीं करती, ये बेनिफिशियल भी प्रेफरेबली जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करें अगर चाइल्ड सही हालत में है, कि उसकी मजिस्ट्रेट के पास जाके रिपोर्ट जो स्टेटमेंट है वो लिखी जाए. और मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन है. मेडिकल एग्जामिनेशन में ये भी फीमेल डॉक्टर का होना वहां पे जरूरी है, और चाइल्ड की तो खैर कंसेंट मानी ही नहीं जाती, तो उसके पेरेंट्स, गार्जियन या पर्सन ऑफ ट्रस्ट, ये लोग होंगे उसके एग्जामिनेशन के लिए. अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, इस मेडिकल एग्जामिनेशन का, वरना तो कई लोग ये भी कह सकते हैं ना कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन करते हुए डॉक्टर ने पॉक्सो डॉक्टर के ऊपर लगा दिया, लेकिन वो डॉक्टर इससे एग्जेम्प्टेड है. जो ऑफेंसेस हैं इसमें, जो मेन 3, 5, 7, 9 में जो ऑफेंसेस हैं, उसमें डॉक्टर का बुक नहीं कर सकते. चार्जशीट जो भी है उसका ट्रायल, जब चार्जशीट फाइल होगी उसका सीआरपीसी की तरह से ट्रायल चलेगी. ट्रायल का प्रोसेस पॉक्सो में नहीं रहेगा, खैर ये तो बात की बात है. और इसमें अगर किसी ने गुड फेथ में कोई इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स या मैलिशियस ना हो, गुड फेथ में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी किसी पर्सन के ऊपर नहीं आती. और अगर किसी बच्चे ने रिपोर्टिंग की है तो उसके ऊपर किसी तरीके का ऑफेंस है भी नहीं. इनफैक्ट अगर बच्चा अपनी गवाही से ही मुकर जाता है तो बच्चे के ऊपर कोई ऑफेंस इस एक्ट में नहीं बनता. इस एक्ट के किसी भी और एक्ट में इसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनता है. When we were talking of statutory mandated medical examination, और मनीष सर ने बताया कि डॉक्टर्स थोड़ा exempted है इससे, तो ऐसा नहीं है कि एक्ट से exempted है. The only point he was trying to put across probably is कि जो examining doctor है, those people are exempted because there's a logic behind it. नहीं तो कोई आगे ही नहीं आएगा even एग्जामिन चाहे, और मना भी नहीं कर सकते वो ऐसे केसेस को. तो इनके ऊपर, ये पुलिस के ऊपर भी ड्यूटी, आप देखिए ऑब्लिगेशन कैसे हो रहा है और मेडिकल प्रोफेशनल्स हो रहा है. तो सिर्फ ऐसा नहीं कि माँ बाप या स्कूल अथॉरिटीज पे ड्यूटीज हैं, इतना बाकी कंसर्न स्टेक होल्डर्स पे भी. आगे एक स्लाइड में हम बात करेंगे सेफ्टी नेटवर्क और स्टेक होल्डर्स की. जैसे सर ने बड़े अच्छे से बताया कि नो लायबिलिटी फॉर बोनाफाइड इन्फॉर्मेंट, और बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट. अब ये जो है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट अंडर पॉक्सो एक्ट. पॉक्सो एक्ट में जो कुछ ऑफेंसेस की कैटेगरी है वो है पेनिट्रेटिव, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव, असॉल्ट, एग्रेवेटेड असॉल्ट, हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, अबैटमेंट और अटेम्प्ट, पब्लिक ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट एंड नॉन रिपोर्टिंग के केस में या मीडिया के ऊपर. तो पेनिट्रेशन और एग्रेवेटेड और नॉर्मल केसेस में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट है और उसमें एग्रेवेटेड में सिर्फ इतना है फर्क
कि एग्रेवेटेड में वो लोग आ जाते हैं जो कि पर्सन ऑफ ट्रस्ट है, जैसे कि पुलिस, हॉस्पिटल स्टाफ, रिमांड होम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिलेटिव, गैंग, रेप ऑफेंसेस टाइप के जो होते हैं वो, या ऐसा कोई इंसान जिस वाज गिवन अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, या जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ही प्रोटेक्ट अस, और वो ये अगर काम करता है तो उस पर एग्रेवेटेड असॉल्ट का, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव का जो भी केस होता है उस तरीके से होता है। जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में 20 साल की सजा है, 20 साल से लेकर लाइफ तक, और अगर वो एग्रेवेटेड यानी किसी पर्सन ऑफ ट्रस्ट ने किया तो इट इज मिनिमम 20 years, which can extend to entire life of the person, and even in case he can be awarded punishment of death penalty। मतलब अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए उस केस में डेथ पेनल्टी तक है, और ज्यादातर जो डेथ पेनल्टी के केस जब क्लॉज इन्वोक हो जाता है, अगर बच्चा 12 साल से कम का है तो उसमें तो डेथ पेनल्टी के, और इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, क्राइम किस तरीके से किया गया उसमें, उस पर डिपेंड करता है। तो 20 साल की सजा इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस। सेक्सुअल असॉल्ट में ये टच बेस्ड होता है, उसमें 5 साल की सजा, एग्रेवेटेड यानी कि पर्सन ऑफ ट्रस्ट अगर करते हो 7 साल की सजा। इन चारों में फाइन जो है वो लगेगा ही लगेगा, एंड फाइन है ये, और नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट, ये छेड़छाड़ के तरीके से कमिटेड विद सेक्सुअल इंटेंट, इन केसेस में सेक्सुअल इंटेंट बहुत जरूरी होती है, और सेक्सुअल इंटेंट को माना ही जाता है। पीछे जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ केसेस डिसाइड किया स्किन टू स्किन टच पे, या एक इंसान, एक जो आदमी था उसने अपनी अनजिप करके एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था, तो वहां पे कोर्ट ने बड़ा अजीब सा डिसीजन दिया कि इसमें इस एक्ट के अंदर नहीं आता, क्योंकि इसमें उसने ऐसा कुछ एक्ट किया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि नहीं, एसेंस इज सेक्सुअल इंटेंट, अगर उसने ऐसा कुछ करा है तो ही विल बी लायबल अंडर दिस एक्ट। जैसे हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं सजेस्टिव, इवन इफ इट इज सजेस्टिव एंड हैविंग दैट काइंड ऑफ अंडरटोन ऑफ सेक्सुअल इंटेंट, तो इट्स एनफ टू ब्रिंग इट अंडर पॉक्सो इफ द विक्टिम इज सच माइनर है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए अगर कुछ मटेरियल यूज करा है तो उस पर भी सजा है, मतलब कांड अगर, और इसमें एक चीज ये भी कहेगी, चाइल्ड अगर वो क्लिप है भी आपके फोन में, सॉरी टू इंटरप्ट, एजुकेशनल पर्पज से है, या आपके फोन या आपके लैपटॉप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, डिवाइस में इसलिए थी कि ताकि वो आपको आगे देनी थी तो ही आप एग्जेम्प्टेड हो, वरना अगर आपके डिवाइस में इस तरीके की कोई क्लिपिंग है तो आपको उसमें सजा दी जा सकती है, अनलेस यू वर रिपोर्टिंग इट। रिपोर्टिंग पर्पज से एग्जाम्पशन है, उसके अलावा नहीं है। इन केसेस की अबेटमेंट करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं उसके ऊपर भी सजा है, जो कि 1/2 ऑफ अटेम्प्ट में मैक्सिमम जा सकती है। पब्लिक ऑब्लिगेशन रिपोर्ट करने की अगर नहीं करते तो आपको 6 महीने तक की सजा है, और जो मीडिया हाउसेज है खासतौर से जो इनकी ड्यूटी बनती है रिपोर्ट करने के लिए, इट इज मैंडेटरी टू रिपोर्ट। नाउ यू टेक ओवर हियर। आई थिंक सर ये टोटली आपका डोमेन है, इसमें आप बात करें, मैं अराउंड 1 or 2 स्लाइड्स मोर। ठीक है, टेक इट। ठीक। तो अब इसमें स्टेजेस क्या होती हैं? स्टेजेस आर की पुलिस कंप्लेंट। पुलिस कंप्लेंट कोई भी, तो हमने डिस्कस भी किया था, पुलिस कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। एफआईआर रजिस्टर होती है, एफआईआर के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर के पास जो उसकी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है 64 की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट सबमिट होती है, चार्ज फ्रेम होंगे, ट्रायल चलेगा और जजमेंट होगी। आइडियली तो इसका 1 साल का टाइम फ्रेम है खत्म करने का, और वो डिपेंड करता है केस किस तरीके से रन कर रहा है, केस किस तरीके से रन कोई अगर नहीं यहाँ कर रहा लॉ है। स्टूडेंट है, मैं कहूंगी इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले ले, या बाद में जब आप यूट्यूब में देखोगे तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट्स कम्प्लीटली परमिटेड फ्रॉम आवर एंड, क्योंकि इसमें पूरे स्टेजेस हमने बताने की कोशिश की है। ये तो हुई स्टेजेस। अब एज पर पॉक्सो रूल्स, आपको पॉक्सो रूल्स फॉर स्कूल वो क्या बोलते हैं? अब जैसे स्कूल में कई तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं, टीचर होते हैं या जो स्टाफ होते हैं, तो उसके लिए पॉक्सो रूल्स 2020 ये कहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सबका पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ ऐसा कोई भी एम्प्लॉय आप नहीं रख सकते जो कि कभी इस तरीके के ऑफेंसेस में, खासतौर से चाइल्ड के अगेंस्ट इन्वॉल्व रहा हो। अगर ऐसा है तो उसको तो जॉब मिलनी ही नहीं है, और जो बाकी हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। दूसरा, एज पर पॉक्सो रूल्स पीरियडिक ट्रेनिंग इज मैंडेटरी हर स्कूल में, फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पेरेंट्स। ट्रेनिंग इज मैंडेटरी टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस इज द की ऑफ दिस एक्ट। बाकी एवरी स्कूल नीड्स टू ड्राफ्ट अ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसमें कि वो जीरो टॉलरेंस जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की हम बात करते हैं
कि zero tolerance towards the child sexual offenses or anything like that. तो ये अगर आप व्हाइट में जो सबहेड्स है स्लाइड में आप देख रहे हो, चाहे आप बाद में रिकॉर्डिंग में देखो या अभी लाइव में आप व्यू कर रहे हो, तो पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जैसा ने बताया, ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ स्टाफ, जो भी, चाहे जरूरी नहीं है ऑन रोल हो एम्प्लॉइज, वो कोई फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, 1-2 दिन की दिहाड़ी वाले लोग भी हो सकते हैं, ये जरूरी है कि उनका बैकग्राउंड चेक हो पीरियोडिक, अगर जितना हो पाए ट्रेनिंग हो, और इनफैक्ट वो ऑप्शनल भी नहीं है, मैंडेटरी है, स्पेशली स्कूल्स में, क्योंकि कहीं कहीं फाइन्स तो है ही है पर डीएफिलिएशन तक भी हो सकता है। सो दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस कि क्वार्टरली ट्रेनिंग्स करके आपको रिपोर्ट प्रिपरेशन करनी है, जिसमें कई बार प्रोफेशनल्स असिस्ट कर देते हैं। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है जो एक होनी चाहिए, ये नहीं कि ऑन पेपर होनी चाहिए, मतलब अगर होगी ही नहीं पॉलिसी तो फिर आप इम्प्लीमेंट क्या करोगे। तो पहला स्टेप तो है कि वो पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए, पेरेंट्स को बताया जाए, सेंसिटाइज किया जाए, क्योंकि स्कूल की बात कर रहे हैं अभी हम एक्सक्लूसिवली, एनजीओ के लिए भी है पर कोई रूल्स अलग से नहीं है। स्कूल में अब एक बच्चा आप खुद देखे इतना टाइम स्पेंड करता है, ना सिर्फ अपने जीवन का बट एक एक दिन का, तो उसमें उसके साथ हैरेसमेंट होना बहुत ही एक लॉजिकल सा सिचुएशन है कि हो सकता है कहीं ना कहीं, इट इज अ पॉसिबिलिटी, वेरी अगली पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पे हम आते हैं, आई टेक ओवर फ्रॉम हियर सर। पॉक्सो कमिटी फॉर स्कूल्स जो हम बात करते हैं, जैसे स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो हमने स्लाइड उसी तरह से डिजाइन की कि कॉम्पोजिशन क्या होता है पॉक्सो कमिटीज का स्कूल्स का। तो अगर हम एक जनरल ओवरव्यू देखें तो जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, ही और शी इज चेयरपर्सन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, मैनेजमेंट रन स्कूल्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, वो मेंबर तो होंगे क्योंकि उनकी बात सुनी जाएगी डेफिनेटली कमिटी में भी, दे हैव अ से। फिर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, है ना, उस एरिया के या जैसे, तो वो मेंबर होते हैं, ऐसा नहीं अनरजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। जरूरी नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल से हो, अगर सरकारी से हो तो बहुत अच्छा, प्राइवेट भी चलेंगे, एमबीबीएस जो है वो मेंबर हो। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो जैसे काउंसलर रखते हैं कई स्कूल, तो वो भी मेंबर हो। और 2 फैकल्टी मेंबर्स, तो चाहे आप सीनियर फैकल्टी मेंबर्स देख लो, उनको टीचर रिप्रेजेंटेटिव करके रखना है। एक नॉन टीचिंग स्टाफ से भी मेंबर होता है, जैसे केमिस्ट्री लैब से कोई हो गया जो नॉन टीचिंग, एडमिन से हो गया, ठीक है वैसा। 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एज मेंबर्स, ये भी मतलब जूनियर स्टूडेंट को नहीं रखते प्राइमरी से, सीनियर सेकेंडरी, वो सेकेंडरी से, जैसे आपका अबव 10th हो गया, या मतलब अबव 9th आप बोलो, 9, 10, 11, 12, यहाँ से जनरली जो रैशनल है, बहुत ज्यादा न्यूआंसेस गिवन नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है, पर 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंबर्स। तभी स्टूडेंट की भी सेंसिटाइजेशन कराना आप देखिए कितना जरूरी है फिर पॉक्सो एक्ट में। मैंने जैसे पहले कहा था, एवरी लॉ इन इंडिया, also in the globe, I would say, I would take the liberty to say that, is linked with the other law. उस कंट्री में या उस रीजन में जो बाकी लॉज होंगे उससे एक लॉ हमेशा लिंक्ड होगा। अगर मैं आज क्रिमिनल लॉ की बात कर रही हूँ, आई कैन नॉट क्लेम दैट सिविल लॉ से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स क्या है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, इट डजंट गो लाइक दैट। ठीक है, तो लिंक्स हर जगह आते हैं। अब आप देखिए जैसे हमने बात किया था सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट, सो एंड सो, तो अब कहीं तो फायदा होगा ना उस चीज का, कहीं तो फर्क पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, इट विल बॉइल डाउन टू दिस काइंड ऑफ लेवल ऑफ अवेयरनेस। अगर स्टूडेंट अवेयर ही नहीं है, वो का मेंबर बन के भी क्या करेंगे ऐसे कमिटी का, वोंट बी एबल टू ऐड एनी काइंड ऑफ वैल्यू, और प्लस बस एक बोलने की बात हो जाएगी कि एक फॉर्मेलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, डेमोक्रेसी है, दिखाने के लिए कि ये भी मेंबर है। तो उससे बेटर है कि उसे भी कुछ योगदान करने को, वो भी कुछ रिपोर्टिंग करे, अगर देखें ड्यूटी बाउंड फील करे। फिर एक एक्सटर्नल मेंबर होता है, लॉयर हो सकता है, कोई सीए हो सकता है, कोई और रिप्यूटेड पर्सन हो सकता है और सोसाइटी जैसे भी, तो एक्सटर्नल मेंबर हो, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है हम लोगों ने कि एनजीओ से कोई है, एडवोकेट है, रिप्यूटेड पर्सन है, पेरेंट, इस तरह से। फिर आप देखिए चाइल्ड सेफ्टी की जहाँ पे बात हो रही है, वहां पे हमने पहले बात की थी पॉलिसी की। तो चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन पॉलिसी, इसके क्या क्या, हम पूरा तो डिटेल में नहीं जा पाएंगे ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम हियर, बट चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन पॉलिसी का, सीपीपी का, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का अगर मैं एस्पेक्ट आपको मेन बताऊं, तो सबसे पहले है किसी भी स्कूल में या किसी भी एनजीओ में या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में, चाहे इवन आप प्ले स्कूल बोल लो, हॉबी क्लासेस के लिए बोल लो, जो ये ऐसे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें प्रियम्बल, एक पॉलिसी का प्रियम्बल होना कि भाई ये क्या, व्हाट एग्जैक्टली, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, जैसे बुक में हम प्रेफेस देखते हैं वैसा, तो जैसे किसी घर का गेट होता है ना, पूछते हैं, वैसा प्रियम्बल है।
प्रियम्बल के बाद आप कुछ कीवर्ड्स बोलोगे, डेफिनेशंस है. व्हाई आई एम पुटिंग दिस emphasis on the language Hindi here is we had initially thought that we'll keep it completely in English. However, the slides are in English. तो जो स्लाइड का कंटेंट है वो अंग्रेजी में है, इसलिए मैं यहाँ हिंदी में वार्तालाप आप लोगों से करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि यूट्यूब में भी आगे जो देखे तो मासेस तक ज्यादा अवेयरनेस पहुंच पाए इस चीज की. गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत जुड़ते भी हैं, देखते भी हैं ऐसी चीजें, तो सबको ही फायदा हो इस बात का. ओके, सो प्रियम्बल है, डेफिनेशंस है जो पॉलिसी में आपको डालनी, कोई कीवर्ड्स, क्योंकि किसी स्कूल के लिए कुछ कीवर्ड्स मायने रखेंगे, किसी के लिए कुछ, कोई एकदम 1 पेज का बना के अपना तैयार कर लेगा, कोई 100-150 पेज का करेगा. एक एवरेज होता है कि भाई अब कम से कम 30 से 50 पेज बन जाता है अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करके पॉलिसी बनाते हो. तो प्रियम्बल है, डेफिनेशंस है, जितना हम अपने एक्सपीरियंस से पॉलिसी ड्राफ्टिंग का बोल सकते हैं. एसओपीस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स बोल लो. पर्पस है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी, है ना, एम्बिट आप बताओगे. टाइप्स ऑफ अब्यूज, हमने अभी बात की चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की. अब क्या क्या अब्यूज इसमें डाल रहे हो, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो. गवर्नमेंट जो साइट्स हैं उसमें बहुत फ्री रिसोर्सेज हैं. पॉक्सो एक्ट के ऊपर गाइड्स है, मैनुअल्स है, हैंडबुक्स है, इससे आप हेल्प ले सकते हो. टाइप्स ऑफ अब्यूज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कमिटमेंट ऑफ स्कूल, कि स्कूल क्या अपना योगदान इसमें दे रहा है, कमिटमेंट क्या है इसमें, विजन क्या है इस चीज में, कि अच्छा ऐसे पॉलिसी होगी तो पॉलिसी के बाद हाउ आर वी कमिटेड एज एन ऑर्गेनाइजेशन. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैनेजमेंट और स्टाफ के, कि कौन क्या क्या करेगा क्राइसिस के सिचुएशन में. जैसे मॉक ड्रिल्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या होगा, रोज तो नहीं आ रहा, आजकल आ रहा है वैसे, पर जैसे फ्लड्स हैं कुछ है तो हम कहते करते हैं ना कि हाँ फायर हो जाएगा तो कैसे करेंगे. वैसे ज्योग्राफी में सिखाया गया है, बचपन में हम जानते हैं ये सारी चीज, पर जब हम पॉक्सो की बात करते हैं, पॉश की बात करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं, तो हम चुप क्यों हो जाते हैं. चीजें तो ये हो रही हैं. जब ये हो रही है तो व्हाई आर दे टैबू, व्हाई कांट वी स्पीक अबाउट इट, व्हाई कांट वी डिस्कस अबाउट इट. 4 लोगों को बोल क्यों नहीं सकते. अच्छी चीज है आप बातें करें. पॉर्न के क्लिप्स डिस्कस करने से बेटर है आप सेक्सुअल ऑफेंसेस से किसी को बचाए. ये चीज है, क्योंकि घोर कलयुग इतना ही है कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बच्चे भी अगर अपना योगदान देंगे, कोई सीनियर स्टूडेंट जूनियर्स को सेंसिटाइज करेंगे एक अच्छे वैसे भाईचारे की तरह से, तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स और स्टाफ जो है वो भी मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ ये अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी के लिए दे आर सो विजिलेंट, तो हमें भी इनका पूरा ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करना है. पर अगर बच्चे भी ऐसे हैं, माँ बाप भी ऐसे, कोई कल्चर ही नहीं है, कभी कोई बात ही नहीं कर रहा, तो फिर कहाँ से अवेयरनेस. तो एकदम ग्रास रूट लेवल से करने में ऑर्गेनाइजेशंस को भी, संस्थाओं को भी बहुत दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे. आप देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ हैव टू बी आउटलाइंड इन दैट पॉलिसी. इट हैज टू बी केप्ट ट्रांसपेरेंट. फिर कॉन्फिडेंशियलिटी आप देखें कि कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज बहुत जरूरी है, जैसे कि मीडिया हाउसेस के लिए है एक्ट के अंडर, कि कहीं ऐसा कोई इशू होता है अनटूवर्ड तो आप जाके हर जगह बोल दोगे इस बच्चे के साथ हुआ है, ये नाम है नहीं, राइट, या किसने किया है क्या, ये सारी डिटेल्स, क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ हो सकता है, तो कुछ डिटेल्स एकदम कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, एनोनिमस रखने हैं. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं कि मतलब कि बचाना ऑब्जेक्टिव है, संवारना ऑब्जेक्टिव है, उसको एक तरह संरक्षण देना, एक रक्षा प्रोवाइड करना अंडर लॉ, अंडर द अधिनियम जैसे कहते हैं हिंदी में, तो वो ऑब्जेक्टिव है. वो अगर मीट हो रहा है तो आपको नाम और एड्रेस और ये सब देने का कोई मतलब नहीं है, आप बल्कि दोगे तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. फिर इंटरवेंशन या मेजर्स बताओगे कि अच्छा ठीक है ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारे स्टाफ और मैनेजमेंट की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. अब हम मेजर क्या लेंगे अगर ऐसा क्राइसिस होता है, हाउ विल बी इंटरवीन. ठीक है, और कुछ शेड्यूल्स बनेंगे या अपेंडिसेस बनेंगे जो कि ऑप्शनल है, पर अगर आप बनाना चाहते हो कि थोड़ा डिटेल करने के लिए पॉलिसी को, तो बना सकते हो कि ये हमारी ग्लॉसरी है, ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है जो हमने डेफिनेशन में नहीं लिखे थे, या ये कुछ फॉर्मेट्स है, टेम्पलेट है, हम इस तरह से कंप्लेन करेंगे, इस तरह से मॉक ड्रिल करेंगे, इतने इतने दिन में ट्रेनिंग होगी, ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है. इस तरह से कुछ आप रखना चाहते हो तो शेड्यूल में रख सकते हो. हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम 11 आपको एस्पेक्ट्स दें, फीचर्स दें. ओके, अब जैसे हम बात करते हैं इज योर सेफ स्कूल ट्रूली सेफ. आप हेडिंग देखिए, हमने थोड़ा सोच समझ के हेडिंग्स रखी, कोशिश किया है कि पीपीटी अपने आप एक्सप्लेनेटरी हो. सो इज योर सेफ स्कूल ट्रूली सेफ. कई बार कहने को क्या होता है, पेरेंट्स भी कहते हैं हमारे बच्चे का स्कूल बहुत सेफ है, या टीचर्स प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ हमारा स्कूल तो इट इज वेरी सेफ. तो इसमें कुछ मैं बताना चाहूंगी कि आप FAQ बोल लो या आप इसे बोल लो कि मिथ्स बोल लो, है ना. तो ये होता है कि पॉक्सो जनरली सिर्फ गरीब फैमिलीज में हो रहा होता है, या कंप्लेन वहां से होती है वल्नरेबल सेक्शंस में. रिच और एलिट के लिए पॉक्सो नहीं है. जो हम केसेस भी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो जे कॉलोनीज से हैं या स्लम ड्वेलर्स हैं उनके हैं, ऐसा ऐसा सोचते हैं, मतलब दिस द पब्लिक परसेप्शन विच इज अगेन वेरी फ्लॉड. ऐसा कुछ है नहीं.
ठीक है, रिच और पुअर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं, अगर हम हेरासमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम ऑफेंस की बात कर रहे हैं, असॉल्ट की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट की, तो भाई वो तो कहीं भी हो सकता है। उसमें कौन रिच और कौन पुअर और कौन क्या, सिर्फ एक एज ब्रैकेट हमें गिवन है कि भाई बिलो 18 है तो वो चाइल्ड है, माइनर है, जो इस एक्ट में आ रहा है। एक्ट कैसे भी है, अगर वो इसमें आ रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस की कैटेगरी में, इसमें कहाँ से आपका रिच और पुअर या इकोनॉमिक डिवाइड कुछ हो गया। फिर दूसरी बात होती है भाई सीरियस अब्यूज तभी है जब कुछ फिजिकल है, हाथापाई कुछ हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, कोई टचिंग या पेनेट्रेशन है, तभी सीरियस अब्यूज है, हम तो तभी रिपोर्ट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ फिजिकल अब्यूज ही सीरियस अब्यूज नहीं होता। अगर मेंटल हैरेसमेंट भी है उस तरह के कि वो सेक्सुअल नेचर का है या सेक्सुअल इंटेंट से किया जा रहा है, रोज रोज के जो तंग किया जा रहा है, स्टॉकिंग की जा रही है, और ये सब बुलिंग हो रही है, देखो साइबर बुलिंग जैसे होता है, अब वहां फिजिकल का है। आप देखो, अगर तो आप ऐसा सोच लो कि नहीं फिजिकल स्पेस में ही है जो है सीरियस अब्यूज, तो फिर आप आधी चीज तो आप गटक ही गए, आप सोच ही नहीं रहे उसके बारे में। तो वी हैव हाफ बेक नॉलेज, और कहते हैं ना अज्जल गगरी छलकत जात, अब हिंदी में एक मुहावरा होता है। तो हाफ बेक नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, आप नॉलेज लीजिए तो पूरी तरह से लीजिए। ऑल्सो मोस्टली कमिटेड बाय स्ट्रेंजर्स, लोग सोचते हैं अरे ये तो स्ट्रेंजर्स नहीं किया होगा या अननोन पर्सन होगा, जिसकी वजह से इवन जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हम तो स्ट्रेंजर्स को अलाउ ही नहीं करते। जैसे बहुत अच्छे अच्छे हिल स्टेशन वाले एरियाज हैं इंडिया में, बहुत नामी एकदम प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स, वो कहते हैं हम अलाउ ही नहीं करते स्ट्रेंजर्स को गेट के अंदर से, सिर्फ पेरेंट्स आते हैं, कभी फंक्शन में कोई आ गया, सबकी चेकिंग, सबका बैकग्राउंड वो सब हमें पता है, तो कोई, और बाकी टीचर्स हैं और आपस में ये स्कूल मेट्स हैं, तो थोड़ी ना कोई ऑफेंस होगा हमारे इंस्टीट्यूशन में, ऐसा नहीं होता। और स्टूडेंट्स शुड बी वेल ट्रेन, जैसा मैंने कहा, बच्चे खुद वेल ट्रेन्ड हो, अवेयर हो, दे नो अबाउट सेफ्टी रूल्स, जो कि एक जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की भी है। एंड स्कूल स्टाफ शुड बी पुलिस वेरीफाइड, जो कि बात आगे हो चुकी है, प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज इन द स्कूल, देयर शुड बी रिटन पॉलिसी, क्योंकि प्रिवेंशन तो तभी होगा ना जब बैकग्राउंड वेरीफाइड है आपका, और आप अच्छे मंसूबों से, मंशा से स्कूल में हो या उस ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आप कहीं ना कहीं आप भी अवेयर रहोगे, आप भी एक रडार की तरह स्कैन करते रहोगे, भाई कहीं कुछ ऐसा केस तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ ऐसा इशू तो नहीं हो रहा, कोई बच्चा परेशान तो नहीं है, बिहेवियरल चेंज तो नहीं है। तो दिस 24/7 टाइप का एक सर्विलेंस होता है ना, बच्चा भी सेफ फील करता है, वो अथॉरिटी के पास जाता है, हाँ इन्हें मेरी फिक्र है, कंसर्न है, तो वो फिक्र मतलब ऑन पेपर नहीं होता, वो दिखता है कंडक्ट में, राइट। देन देयर शुड बी रिटन पॉलिसी फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर, जो मैंने कहा, इससे ना थोड़ा रिलायबिलिटी, थोड़ा क्रेडिबिलिटी बढ़ता है इंस्टीट्यूशन का भी, दैट दे आर कमिटेड to the objectives under such an important act, and there should be a counselor or authority to whom victims can approach, of course very important। फिर अब हम देखते हैं कि schools कर क्या सकते हैं to make their space a safe space। हम जैसे हम एक्शन वर्ब्स में बात करेंगे, तो फटाफट मैं जल्दी से इसे वॉक थ्रू करना चाहूंगी कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर रखो, आप वातावरण ऐसा रखो स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कि जो कि फ्री फ्रॉम फियर, एंजाइटी एंड स्ट्रेस है। मतलब बहुत ज्यादा आप डर और एंजाइटी और स्ट्रेस डाल दोगे बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स को किसी चीज के बारे में सेंसिटाइज करो, वो बड़े हैं वो समझ जाएंगे, पर बच्चों के ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा फियर एक फैक्टर डाल देते हैं, तो इट विल नॉट गिव एनी गुड रिजल्ट्स। समझाना और अवेयर करना एक चीज होती है, फैक्ट बताना एक चीज होती है कि ऐसा करोगे ऐसा होगा क्योंकि ये हमारा लॉ है, ये है, पर उसको भी इतना ऐसे ना बताया जाए जैसे एडल्ट्स को बोला जाता है, एक स्टोरीज से बताया जाए, वीडियोस से बताया जाए, एक मतलब एक सटल किस्म के रोल प्ले से बताया जाए, केस स्टडीज थोड़ा बहुत डिस्कस कर, अगर बड़े बच्चे हैं तो केस स्टडीज थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाए, छोटे बच्चे हैं थोड़ा एक्टिविटी बुक दे दिया, डायग्राम से समझा दिया, इस तरह से, ताकि उन्हें टेंशन और प्रेशर तब से बिल्डअप होने ना लग जाए कि हाँ वो किसी पे भी ट्रस्ट ना करे, वैसा भी नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं होना है हमें। और चिल्ड्रन शुड हैव कॉन्फिडेंस टू रिपोर्ट अबाउट सेक्सुअल अब्यूज, उन्हें पता होना चाहिए भाई अगर मैं विक्टिम हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, है ना। कई बार जैसे औरतों के साथ भी होता है ना कि रेप जिसके साथ हुआ है वो आके बोलती ही नहीं है आगे कि भाई मैं इम्प्योर हो गई हूँ, या मेरे साथ गलत हुआ है, या मेरी चेस्टिटी जो कहते हैं इन क्वेश्चन आ जाएगी, लोग जग हसाई करेंगे, तो ये सब होता है। तो बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा होता है, पेरेंट्स को भी नहीं आके बोलेंगे, चुपचाप एक हाइबरनेट कर जाएंगे शेल में, और गलत होता रहेगा, वो सहते रहेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि भाई क्या, उसके बाद गलत स्टेप उठा सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, अपने आप एक दिन ओवरनाइट नहीं आता कि भाई अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो तुम उसके बारे में रिपोर्ट करोगे, और उसे कैसे पता चलेगा कैसा इंसिडेंट होता है, कैसे पता चलेगा किसको रिपोर्ट करना है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो दैट्स वाई जो प्रीसीडिंग स्लाइड्स थे हमने उसमें थोड़ा बेस क्लियर करने की कोशिश की। जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस होते हैं बच्चों के, उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हर एकेडमिक ईयर में
की जाए तो एक आप बोल सकते हो कि हाँ सेफ स्पेस है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एंड सच सेशंस टू इंक्लूड टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो। अब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को बता दिया बस, पेरेंट्स को भी बताओ, टीचर्स को बताओ, ताकि थोड़ा सा एक एडल्ट्स के दिमाग में डर रहे और बच्चों के दिमाग में सही इंफॉर्मेशन रहे ना। अच्छा, फिर हम आते हैं कॉन्क्रीट मेजर्स फॉर स्कूल अथॉरिटीज पे, कि अब देखिए अब जैसे लेवल बढ़ रहा है स्लाइड का, हम ऑलरेडी टुवर्ड्स एंड पहुंच चुके हैं, 7 भी बज चुके हैं, तो विदाउट टेकिंग मच टाइम थोड़ा स्पीडली जाएंगे ताकि डिस्कशन क्वेश्चन आंसर जैसा भी हो पाए। दीपा मैम कुछ लास्ट में बड़े अच्छे से बोल पाए, रितु मैम अगर कॉल पे है मीटिंग में तो हम कहेंगे उन्हें भी 1-2 लाइन बोलने के लिए अच्छा कुछ इस बारे में। तो कॉन्क्रीट मेजर्स फॉर स्कूल अथॉरिटी, अब देखो और एक्शन हम बता रहे हैं कि कैसे स्कूल अथॉरिटीज और एक्शन ले सकते हैं टुवर्ड्स मेकिंग देयर स्कूल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अ सेफ स्पेस। वो एम्प्लॉइज का ना फिक्स कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये करना आसान होता है एक तरह से, अगर वो रिटर्न में भी हो, अगर उसकी सेंसिटाइजेशन भी हो, अगर ट्रेनिंग भी हो रही है, जैसे फ्रेश बैच ऑफ टीचर्स आते हैं, एम्प्लॉइज आते हैं, तो उनकी आपने ट्रेनिंग्स करवाई, तो ऑनलाइन करवाई, ऑफलाइन, ऑफलाइन ज्यादा इफेक्टिव होता है, पर फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, पता होना चाहिए कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, कि भाई अकाउंटेबल कितना कर रहे हो आप किसी को, या सब लोग सोचे मेरा स्कूल थोड़ी ना है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है, नहीं, आप सब प्रिंसिपल की तरह सोचो, आप सब हेड मास्टर हेडमिस्ट्रेस की तरह सोचो, सब लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का कल्चर बनाया जाए धीरे धीरे, मतलब उसके टुवर्ड्स वर्क किया जाए, क्योंकि ओवरनाइट तो वो भी नहीं होगा। एक स्ट्रिक्ट सीएसी हो ऑफ एम्प्लॉइज और स्टाफ। व्हाट इज सीएसी? कैरेक्टर एंटीसीडेंट चेक, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि बैकग्राउंड ऐसे नहीं कि कोई राह चलते हैं और उसको आपने अच्छा चलो ये कम पैसे लेगा तो बच्चों को बस में उठा देना, भाई ये कर देना, और वो गलत वे से टच कर रहा है लेट्स से बच्चों को, या कोई गिर गया तो उसके मतलब फायदा उठा लिया कहीं मैं तो बच्चे को उठा रहा था बस वो गिरा था, तो ऐसा भी केस आया था एक किसी ने यहाँ नैनीताल में अभी पीछे हुआ था, बिरला विद्या मंदिर में आईपीएससी करके, तो हम गए थे वहां, रिप्रेजेंटेशन था, तो एक बहुत मतलब बढ़िया एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि अगर तो ऐसा होता है जब मान लीजिए कोई कंडक्टर है या बस ड्राइवर है, वो बच्चा गिर जाता है और पियन है या जैसे भी बच्चा गिर जाता है कहीं से किसी सिचुएशन में, उसके सामने गिरता है, वो जाके मेल है वो बच्चा, मान लो फीमेल चाइल्ड गिरती है और वो जाके उठा रहा है बच्चे को, ठीक है, तो उसने सही किया गलत किया, तो मतलब 90% 95% ऑफ अस विल से उसने सही किया, ठीक है। पर ऐसे में फिर एक लाइन देने के बाद, आपको पूरे फैक्ट्स नहीं पता, एक लाइन देने के बाद, क्योंकि लोग भी बहुत शातिर होते हैं, चालाक होते हैं, जब वो लीगल ओपिनियन भी लेते हैं ना तो लॉयर को भी सारी बात नहीं बताते, तो एक लाइन बताने के बाद वो कहते हैं अच्छा सर आप तो कह रहे हो कि ऐसे, मतलब एक लॉयर को उन्होंने ऐसे पूछा एंड आई वाज आल्सो देयर, तो उन्होंने कहा कि सर आप तो कह रहे हो कि सही किया, अब अगर बताया जाए कि हमारे ही कॉन्टेक्ट में किसी ने किया और वो तो ट्रायल पे है पॉक्सो के, तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे, मतलब उसके साथ गलत हो रहा है, ट्रायल गलत है फिर, तो दैट मीन्स पूरे फैक्ट्स नहीं बताए गए कि उसने जिस तरह से उठाया, मतलब वो मैनरिज्म जो था उठाने का बच्चे को, वो वाज इट गुड टच और बैड टच। अब आप ये भी देखो कि बच्चे के उसमें और कितनी बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, या अगर उसे जानबूझ कुछ भी हो सकता है ना, जानबूझ के गिराया गया बच्चे को ताकि उसे बस पब्लिक के सामने दिखाने के लिए मैं तो अच्छा काम, मैं तो लिफ्ट कर रहा हूँ बच्चे को, मैं तो उसे बचा रहा हूँ इंजुरी से, और एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आपकी इंटेंट क्या है और एक्शन मोटिवेटेड क्या है, तो मतलब वी कैन नेवर से, हो सकता है हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो हमें ये इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, बट इन रियल लाइफ थिंग्स लाइक दिस आर हैपनिंग। तो कैरेक्टर एंटीसीडेंट चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय स्टाफ के अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है, माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए। रेगुलर अवेयरनेस से क्या होता है ना, माइंडसेट चेंज होता है, अभी जैसे हम कह रहे हैं हमारा माइंडसेट ही नहीं है, अब जैसे होता है किसी किसी का क्रिमिनल माइंडसेट, आज हम पढ़ रहे थे बड़ा शॉकिंग न्यूज, हम जैसे लाइव लॉ और ये सब जो पोर्टल्स होते हैं सभी लोग सब्सक्राइब हैं आज की डेट में, लोग जल्दी जल्दी न्यूज चाह रहे होते हैं, तो ऑन द हैंडसेट्स, तो हम पढ़ रहे थे बड़ा सैड सा एक शॉकिंग सा न्यूज आया कि कैसे एक लड़के ने अपने लिव इन पार्टनर के कितने 30 से ऊपर टुकड़े कर दिए और फ्रीजर में रख दिया, और फिर हर रात को 2 बजे उठ उठ के डिस्पोज ऑफ करने कहीं जाता था टुकड़ों को। अब आप खुद सोचो उसका कितना क्रिमिनल माइंडसेट होगा उस इंसान का, क्या हम और आप इस तरह के सोच पाएंगे करने का, नॉर्मल एवरेज इंसान सोचेगा और उसे इंप्लीमेंट भी कर देगा, हाउ मेनी टाइम्स, बट नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हैबिचुअल क्रिमिनल हो, पर वो माइंडसेट कैसे बना या किस तरह से वो पहले ही था, क्या था ना, एवरी पर्सन इज नॉट द सेम ना, पर नाउ हाउ डू वी नो, अब एक बार इंसिडेंट हो गया फिर तो नहीं रो सकते, तो पहले ही अपना सारे सेफगार्ड्स आप लेके चलो।
रेगुलर ट्रेनिंग अवेयरनेस से माइंडसेट चेंज होता है। और जैसे आप इस तरह के फैसिलिटीज रखते हो ना, कंप्लेंट बॉक्स हो गया या हाँ विसल ब्लोअर फैसिलिटी हो गई, जो मिनिस्ट्रीज में और गवर्नमेंट ने ये पॉश के लिए किया है शी बॉक्स, और वैसे बच्चों के लिए किया हुआ है ई बॉक्स। तो अब देखो इस तरह की चीजें अगर स्कूल के प्रांगण में भी है और एनोनिमस वे से आप कंप्लेंट डाल सकते हो, तो बच्चे के लिए भी आसान है, कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, इसमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा अथॉरिटीज को। अब मेजर्स फॉर स्कूल्स, और आप कहें तो जो कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉइज है या जो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज है वो सोच के करना है, सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस करनी है, एक रिपोर्टिंग का वातावरण होना चाहिए ना कि छुपाने का, और सीपीपी ड्राफ्टेड हो तो अच्छा है। मैं समराइज कर रही हूँ, ये हमने पहले बात की हुई है, पॉलिसी फॉर स्टाफ हो, फिर कंप्लेंट या ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम अच्छे से बना हो। अब आप नेक्स्ट जब स्लाइड देखेंगे तो बड़ा वेरिड सा स्लाइड है रिगार्डिंग रोल ऑफ, कई सारे आपको कॉमा कॉमा देख के एजेंसी दिखने को मिलेंगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट कॉमा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओस कॉमा स्कूल्स एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। अभी इस वेबिनार में भी टॉक में भी कभी एनजीओ से लोगों ने रजिस्टर किया था, हम जब डेटा देख रहे थे। तो फॉर सम रीजन मे बी इट्स अ वीकडे एंड इवनिंग, तो टर्न अप ये है, बट वी आर वेरी हैप्पी कि जो लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड है और सिंसियरली मतलब इसमें जानना भी चाहते हैं और कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, वो इस कॉल पे आगे भगवान करे कि बहुत लोग इसे देखें यूट्यूब में और वैसे समझे, इससे जो भी अवेयरनेस वो लेना चाहें। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट, एनजीओ, स्कूल्स एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स अगर आप देखें तो इसमें एक जनरल हमने बताया हुआ है एक ब्रॉड तरीके से कि इनका रोल ये है, जब भी कोई एक्शन करे, जब भी कोई कुछ भी पॉलिसी भी बनाए या कोई टॉक्स कंडक्ट करे, कुछ भी करे, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि भाई चाइल्ड हैरेसमेंट को हर तरह से, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो चाहे नॉन सेक्सुअल नेचर हो, चाइल्ड हैरेसमेंट को प्रिवेंट करना है। क्योंकि एक बार हो गया उसके बाद तो जैसे दीपा मैम ने कहा, फिर तो हो गया तो फिर तो रिड्रेसल देखो, और आप ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे आ गए, एजेंसीज आ गई उसमें, स्टेक होल्डर्स आ गए बीच में, पर प्रिवेंट करो आप चाइल्ड हैरेसमेंट को। एडुकेशन और एनरोलमेंट ज्यादा रखो, मतलब ऑन द राइज, ताकि जितना एडुकेट होगा इंसान, जितना अवेयर होगा इंसान, या जितना फॉर्मल आप कहते हो ना, जैसे डिग्रीज हो गई या कुछ हो गई, उसमें हार्म तो कुछ भी नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि हम कहते हैं एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड है हमारी कंट्री में और ये सारी चीजें, पर इट इज मच बेटर देन नॉट स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड एनरोलमेंट, राइट। तो वो जरूरी है कि हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि राइट टू एजुकेशन है, ड्यूटी है पेरेंट्स की, गार्डियंस की, भेजना बच्चों को। फिर रेगुलेटिंग चाइल्ड लेबर, जो हमने पहले बात की थी जब इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स की बात कर रहे थे एकदम शुरुआत की स्लाइड्स में, कि जो माहौल रहा जिसके बाद पॉक्सो आया 2012 में इंडिया में, तो उसमें जरूरी है कि भाई जब हम सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात नहीं कर रहे, लेबर की भी बात करो, तो जहां प्रोहिबिट नहीं हो सकता चाइल्ड लेबर, जो कि नॉन हेजार्डियस एरियाज है, वहां एटलीस्ट रेगुलेट हो जाए। रिहैबिलिटेशन और रिलीफ की तरफ हम देखें, ना कि पेनलाइजिंग की तरफ। अब पॉक्सो है वो थोड़ा ड्रैकोनियन जरूर है, उसमें पेनल्टी की तरफ जैसे सर बता रहे थे, इवन डेथ सेंटेंस है, रिमाइंडर ऑफ लाइफ वाले इम्प्रिजनमेंट है, वो है। पर जनरल तौर पे हम देखें तो रिहैबिलिटेशन, रिलीफ, रिफॉर्मेशन, ये सारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। लीगल सर्विसेज अगर प्रो बोनो है या पेड भी है, या जैसे लीगल सर्विसेज पे बहुत ज्यादा जोर हो, क्योंकि लोग अगर लॉयर से डर के भागने लग गए तो फिर तो हो गया काम, ये बात है। रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ के बाद लीगल सर्विसेज, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज। देखो लॉ बहुत है, पॉलिसी बहुत है, मैम ने भी ये, दीपा मैम ने बात कही कि बुक्स तो कई है, अनगिनत है हमारे यहाँ, बेयर एक्स और ये सब। तो प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी के आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत मतलब रिमार्केबल राइटिंग्स, जिसमें आप ये, आई एम सॉरी पर मैं एकेडमिशियन स्ट्रीक मेरी निकल के आ जाती है, जो ड्यू में पढ़ा और पढ़ाया, तो वो कहीं ना कहीं बातों में आ जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी जो की है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन वर्ड है। अब कोर्ट से भी अगर आप कोई डिग्री लेते हो और आज आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तो वो पेपर टाइगर है बस। तो वहां एग्जीक्यूशन वर्ड है, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन वर्ड है कि आप ग्रास रूट लेवल पे उसे वर्क करें उस चीज को। या जैसे ही अगर भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, बट देयर इज एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट और क्राइसिस, देन यू कम टू द फोर, यू बी प्रोएक्टिव, डोंट बी पैसिव, डोंट ट्राई टू हश अप थिंग्स बिकॉज इट जस्ट वर्सन्स इट, ठीक है, डोंट शो इट अंडर द कारपेट। फिर काउंसलिंग ऑफ विक्टिम्स जो है कि दैट इज इंपॉर्टेंट। और जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन में भी बात कर रहे थे, सर ने भी कहा कि सिर्फ मॉरल ग्राउंड नहीं है, लीगल ग्राउंड है। आप नहीं बोलोगे तो फिर आपके ही ऊपर तलवार गिरेगी, पनिशमेंट है आपके लिए। अगर आप नहीं बोलते कि किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं बोलते, पेरेंट्स को रोने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है करना है। और ऐसा बिल्कुल भी, मतलब जैसे इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग बिहाइंड द बार्स, तो आप ये समझ लो कि थोड़ी सी अवेयरनेस आपकी, थोड़ी सी मतलब कोऑपरेशन आपकी आपको बचा सकती है।
फिर काउंसलिंग ऑफ विक्टिम्स है जो बहुत जरूरी है, ये भी साइड बाय साइड अगर चलता रहे, जैसे दीपा मैम ने कहा कि जो ट्रॉमा होता है ना बच्चे का, वो सबसे जरूरी होता है, जो कि सिस्टम भी और लेजिस्लेचर भी इस तरह से पकड़ नहीं पाता उस चीज को। तो काउंसलिंग ऑफ विक्टिम्स जितने लोग आगे आए, फ्री में भी करें कुछ है, तो वो बहुत इफेक्टिव होगा सोसाइटी के लिए। हम टूवर्ड्स एंड है एकदम पीपीटी के, और आप देखें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेज है, इस पर बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि जो सेफ्टी नेटवर्क है स्टेक होल्डर्स एंड एजेंसीज की, एक सर्कल बना हुआ है आप देखें चाइल्ड के आसपास, और उसको थोड़ा हमने साथ में बुलेट्स में बताया है कि एनजीओज हैं, पुलिस है ना, आपके पेरेंट्स हैं, स्कूल तो है ही है, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, वो वैसे इंडिया में भी है, स्टेट्स में भी है, SCPCR करके उनकी हेल्पलाइन है 1098 चाइल्ड लाइन, ये पूरे मतलब इंडिया में आपकी चलती है हेल्पलाइन, प्राइवेट एजेंसी से जुड़ी हुई है, पर मतलब फंक्शनल है जहां तक लेटेस्ट मुझे पता है। और CWC चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है वो काम करती है इस चीज में, जो सर ने बताया स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स जो होते हैं वो काम करते हैं इस एरिया में। किस किस तरह से मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, या उसका एक ढाल कह सकते हैं हम, एक रक्षा चक्र कह सकते हैं, वो है सेफ्टी नेटवर्क में अगर हम देखें तो। और इसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगी हमारे हम देसी लिंगो में कहते हैं गूगल बाबा, तो google.com पे जाके इमेजेस पे आप अगर सेफ्टी नेटवर्क आप टाइप करोगे आपको ये इमेज मिलेगी। हम मेरी खींची हुई पिक्चर नहीं है और हम किसी तरह का इसमें क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे, हमने पीपीटी के लिए यूज किया फॉर एजुकेशनल पर्पस। अच्छा, फिर आप आगे वे अहेड देखें तो इसमें सर थोड़ा बताएंगे अगर, और उसके बाद वी विल गो टू दीपा मैम फॉर रिक्वेस्टिंग हर शेयर कमेंट। थैंक यू पूर्वा। अब जैसे ग्रे एरियाज की हमने पहले बात की थी, तो ग्रे एरियाज अब जैसे कंसेंशुअल रिलेशनशिप बिटवीन माइनर्स है, वो उसमें अभी तक कोई जुडिशरी ने तो उस पर क्लैरिटी दी है कि भाई दे नॉट बी इन्वॉल्व इन दोज ऑफेंस, या उनकी तरफ लीनियंट व्यू रखो, लेकिन जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं कर सकती तो हमें एक्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी बच्चे की तो उसको पॉक्सो में बुक करना पड़ेगा। किसी के पास कोई रेमेडी है नहीं, पुलिस को मैंडेटरी उसके रजिस्ट्रेशन केस की करनी ही पड़ेगी, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब तक पार्लियामेंट इसमें नहीं करता तो ये थोड़ी सी सिचुएशन दिक्कत करेगा। और एक और आजकल जो अब जो काफी न्यूज में रहा पीछे, आपने देखोगे पर्सनल लॉज के ऊपर क्या स्पेशल लॉ ओवरराइड करेगा। तो यही कहा गया कि हाँ स्पेशल लॉज विल ओवरराइड, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ पर्सनल लॉ के ऊपर इफेक्ट देगा। अब पीछे केस हुआ ये था कि एक मोहम्मदन फैमिली थी, उसमें जो लड़की थी वो माइनर थी, वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जाया गया तो हॉस्पिटल जैसे ही कहा ना मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, तो उसने देखा कि माइनर प्रेग्नेंट है, तो उसने क्या किया, उसने रिपोर्ट कर दी पुलिस को। पुलिस वहां थी, जबकि वो लड़की शादीशुदा थी एज पर मोहम्मदन लॉ। तो पुलिस आई, केस फाइल हुआ, तो उसमें जो एक्यूज था वो कहते हैं कि शी इज माई वाइफ, तो मेरे ऊपर केस कैसे बनता है, हमारे पर्सनल लॉ में तो शादी हो जाती है माइनर जब होता है। तो उसको केस रजिस्टर होने के बाद जब वो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने इस टाइम पे दो डाइवर्जेंट ओपिनियन आ गए थे। एक में तो इस वाले केस में तो एफआईआर हो गई थी क्वाश कि भाई उसकी शादी हो चुकी है, तो अब उसमें किसी ने केस किया ही नहीं, ना विक्टिम ने किया ना उसके किसी जानने वाले किया, हॉस्पिटल ने मैंडेटरी रिपोर्टिंग के अंदर उसकी कंप्लेंट कर दी, तो उसको उस केस में रजिस्टर कर लिया। तो अब उस केस में उसको हाईकोर्ट ने एक्विट कर दिया। उससे कुछ दिनों पहले ही एक और जजमेंट ये आई थी कि अगर पर्सनल लॉज और स्पेशल लॉज में अगर कोई ऐसी एम्बिग्यूटी आती है या वो क्रॉस करते हैं तो उसमें स्पेशल लॉ ओवरराइड करेगा। और उस केस में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश नहीं किया और उसमें केस चलने दिया। तो अब इन केस में पर्सनल लॉज के ऊपर हो गई है कंसेंशुअल रिलेशनशिप बिटवीन माइनर्स, वो मेजर और माइनर की नहीं, बिटवीन माइनर्स, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं जब तक इसको पार्लियामेंट क्लियर नहीं करेगा। तो ये अभी तक तो फिलहाल ये निकल गया कि ये ग्रे एरिया है। अब जैसे कि केस स्टडीज के बारे में जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, मेरे पास खुद ये केस था, उसमें उसमें फादर था, स्टेप फादर, उसने अपनी स्टेप डॉटर के साथ जो ये ऑफेंस था वो कर दिया, रेप कर दिया ऑलमोस्ट। वो स्टेप डॉटर उसकी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद कोर्ट में जब केस आता है तो वो लड़की गवाही देने को तैयार नहीं होती, ना वो लड़की ना ही उसकी माँ। उनको पूछा गया कि भाई आप क्या वजह, आप केस क्यों नहीं कर रहे थे,
तो उसकी माँ के लड़की ने की माँ ने पहले उसको काफी टाइम तक रिपोर्ट नहीं करा था, फिर उसको आने नहीं दिया, फिर उसके बाद जब उसको जैसे धमका कर लेकर आया, डरा था, तो कोर्ट में आकर वो ये कहती है कि भाई ही इज द सोल ब्रेड अर्नर फॉर अ फैमिली, इज द अर्निंग मेंबर, अगर इसको जेल हो गई या जेल चला जाता है, जेल में इसको लंबी सजा होगी, तो हमारी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अब आप फैमिली को टूटने से बचाओगे सोशली, या आप इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करोगे? ये बड़ी ड्यूअल एज चीज होगी कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग और इसमें सजा जरूरी है, इसमें ट्रायल तो चलेगा ही चलेगा, और आप उस पर लीनियंट व्यू नहीं ले सकते क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट है 10 साल की, अब तो 30 हो गई, पहले तो 10 साल की थी वो उसमें कुछ सेक्शंस में। ये बड़ी दिक्कत है। और दूसरी तीसरी बात है अवेयरनेस के बारे में। अवेयरनेस अभी तक इस एक्ट की काफी कम है, क्योंकि अगर अवेयरनेस अच्छी हो या अवेयरनेस प्रॉपर हो, कई स्कूल तो इसके बारे में सोचते भी नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी तो बहुत दूर की बात है, अवेयरनेस तक के बारे में नहीं सोचते। तो उसका तो तरीका यही रह सकती है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, एडवाइस दी जाए लीगल एक्सपर्ट से, जो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको करेक्ट लीगल पोजीशन बताएं, ताकि इस एक्ट की स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ऋतु मैम का हाँ, सवाल। Ritu ma'am has raised her hand. Yes, Miss Ritu ma'am. Sorry to interrupt. I won't be able to stay for any longer. I have another engagement to keep, but I couldn't leave without thanking you people, congratulating you people, Apurva, Manish, and Ma'am Deepa. I mean, it's such a noble such a noble task. Your honest efforts to spread awareness, they're very, very clearly visible. And we can call this session an eye opener also, like when you were talking about the myths that are associated with this. And I would once again like to congratulate you, and my best wishes always with you. And I would always suggest that you should keep this good work up always. So I would take your leave now, and the rest of the thing I would definitely watch in the YouTube that link. And if you could please send me that link on my WhatsApp, I would be Okay, grateful. Thank you, to ma'am. spend time here. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. दीपा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें ग्रे एरियाज के बारे में? Okay. Yes, whatever you have said is absolutely right. So again, everything comes to basically on, yes, awareness is important. Gray areas are there, but that can be handled till we have some amendment in law, can be handled with awareness. As you said, yes, special law will prevail over this personal laws. Agreed. But the problem is वो personal law जो follow कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए ना कि अभी शादी नहीं करनी है, एक बात है, वो पता ही नहीं है, and that is the problem. So again it comes to awareness. And we have the case in this year January from Kerala High Court, Kerala Court, Special Court of POCSO, where a person was convicted only on the evidence of the child. 9 years old child was there. उसने बहुत क्लियरली कोर्ट में बोला, यस मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये गलत है. कोर्ट ने उससे पूछा तुमको कैसे मालूम है? That boy said, because we were taught in the school what is good touch, what is bad touch, and I remember it and I know it very well, and I'm very sure इस आदमी ने जो मेरे साथ किया वो गलत था, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए. There the awareness comes. So most important thing is awareness. So these gray areas we can manage till some amendment comes out in the law. But awareness is required. As I said, this age of this 15, 16, 17, दोनों घर से भाग गए. Again, the situation is awareness. If we make the child aware, these children, if they know, if these children, they know that अगर हमने ऐसा कुछ किया तो कई बार क्या होता है, हम लोग क्या होता है उन्हें ये सिखाते लॉ तुम्हारे लिए, लॉ तुम्हारे लिए. हम ये नहीं बताते कि भाई लॉ तुम्हारे लिए है, बट यू आर नॉट सपोज टू मिसयूज द लॉ. अगर आपने मिसयूज किया तो ये बैकफायर करेगा. सो प्लीज बी केयरफुल. लॉ आपके लिए बिल्कुल है, आपकी सेफ्टी के लिए 100% है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसका फायदा उठाना शुरू करो, आपको भी नुकसान होगा. तो और ये चिल्ड्रन आर so much exposed nowadays. इंटरनेट है, फुल टाइम इंटरनेट पर हैं, पर उनके पास प्रॉब्लम ये है कि चैनल नहीं है बात करने का.
बॉडी चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें वो देखते हैं इंटरनेट पर, बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत क्वेश्चंस हैं, बट दे हैव नोबडी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। टीचर के पास जाते हैं, टीचर बात नहीं करता है, पेरेंट्स के पास जाते हैं, वो बात नहीं करते। नाउ वेयर द चाइल्ड विल गो? So all those curiosities and all those things, they go again back to the Google Baba, as you said. Now that half information, half knowledge is always more dangerous than the actual thing. That's true. They don't able to understand Google ने क्या बोला, then they go on experimenting the things. And when they experiment, that goes wrong. Yes. There the problem happens. Now in Delhi NCR या भी गुड़गांव में साल 1.5 साल पहले एक केस हुआ था, बॉयज लॉकर रूम। उस केस में क्या किया लड़कों ने, बच्चों ने अपने क्लासमेट्स की पिक्चर्स लेकर, कुछ सेमी न्यूड, कुछ न्यूड, सब वो सब एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में सब इंस्टाग्राम पे शेयर किए। अब उनको यही नहीं पता कि हम जो इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं वो ऑफेंस है, हमें नहीं करना है, पर उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। ऑफेंस तो हो गया, सब बच्चे पकड़े गए, केस बन गया उनके अगेंस्ट। अब क्या, वो स्टिग्मा तो आ गया ना कि बच्चे ने ऑफेंस किया। इतनी छोटी एज में अगर कोई क्राइम कर रहा है तो आप मान के चलते हो कि वो तो पूरा क्रिमिनल थॉट है उस बच्चे में। may not be actually a criminal thought or criminal intent with that child. वो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, क्योंकि पता नहीं वो ऑफेंस हो गया। सो एवरीथिंग घूम फिर के सब कुछ ना पूरे सर्कल में अल्टीमेटली इट कम्स टू अवेयरनेस कि वो बताओ भाई मत करो। के लिए आप पॉजिटिवली इंफॉर्मेशन दोगे तो वो सर्कमस्टेंस ही अलग हो जाएगा। करेक्ट। So the thing is awareness, awareness for teachers, awareness for parents, awareness for children itself. पर हम लोग तो ये सेक्स वर्ड आते ही बात करना बंद कर देते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। कि मैं बात ही So should be open talk, and most important thing is you should always keep that talking channel open with your children. कभी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे अगर कुछ बात करनी है तो मैं कहाँ जाऊं। कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन शुड ऑलवेज बी ओपन, सो दैट बच्चों को ये हो कि मेरे साथ अच्छा बुरा कुछ भी हुआ, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो मैं अगर जाके अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, मेरा प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व कर देंगे। बच्चे ने आके आपसे बोल दिया, बच्चे की तरफ से प्रॉब्लम खत्म, अब आपको संभालना है। बट बच्चे के पास उतना वो थॉट में ये होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ट्रस्ट होना चाहिए टूवर्ड्स पेरेंट्स दैट यस आई कैन गो एंड टॉक एनीथिंग विथ माई पेरेंट्स। बच्चे को ये नहीं सोचना ये हुआ मेरे साथ सही हुआ, गलत हुआ, मेरी गलती है, नहीं है, कुछ भी नहीं, जाके शेयर कर दो, आ जाएगा नहीं तो। हाँ। जाके शेयर करो। सो वी हैव टू हैव दैट ब्रिज विद चिल्ड्रन, दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस टू मूव अहेड। बिकॉज एक्चुअली जो कुछ हो रहा है, जब हम पॉक्सो की बात कर रहे हैं, वो बच्चे के साथ हो रहा है, आपके और मेरे साथ नहीं हो रहा है। वी आर ऑल एडल्ट्स, जो हो रहा है वो बच्चे के साथ हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज द चाइल्ड शुड कम आउट एंड टॉक टू द पेरेंट और टू द टीचर। देन सेकेंड लेवल पे आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, जब बच्चे ने आकर मुझसे बात की उसके बाद मुझे क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग इज जिसके साथ हो रहा है उस बच्चे को आपको समझाना है, कॉन्फिडेंस में रखना है कि तुम मत डरो, हम हैं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम आराम से बताओ क्या हुआ, कोई डरने की बात नहीं है। तो वो ट्रस्ट और वो चीज चाहिए हमें। जब तक वो नहीं होगी, ये हम कुछ भी कर ले कुछ होने वाला नहीं है। लॉ तो है ही, पर प्रॉब्लम ये है कि बात करना, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन, वो अवेयरनेस, मतलब वो ह्यूमन दैट इज इम्पोर्टेंट। सिंपैथी एक होना कि दूसरे की प्रॉब्लम भी समझ। एग्जैक्टली इतनी सॉफ्ट स्किल कहते हैं कि वो तो जरूरी हो, उसके बाद आप लॉ समझाओ कि फॉरेन लैंग्वेज समझाओ, बच्चा समझ जाता है। हाँ करेक्ट। तो वो ट्रस्ट हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। Thank you so much, ma'am. Any questions from any participant, attendee? कुछ भी जो उनके फ्रेंड्स के भी कोई सजेशन या क्वेश्चंस रहे हों, कोई कुछ पूछना चाहे, बताना चाहे, ऐड करना चाहे, प्लीज कम फॉरवर्ड, वुड बी नाइस। रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, यूट्यूब पे जाएगा तो थोड़ा सभी को लगना चाहिए हमने भी पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल, अपने व्यू शेयर करिए, बताइए आपने अभी कुछ, आपको कुछ पिकअप किया आपने, हमने इतनी देर बात करी आप सबसे, या आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछिए। वी आर देयर फॉर दैट ओनली।
Vicky, you would like to ask anything? Ishan, if you're there in the meeting, कुछ पूछना चाहोगे? बहुत bright law students, aspiring judicial officer है ये Vicky, और Ishan is from second year NALSA. Then so they have to work on the subject tomorrow. Yes, ma'am. Hi, I'm Pooja this side. Hi, And Pooja. I love your this thing that you have told about the students and the parental and the teacher reaction. But you know, ma'am, जैसे कि आजकल you know कि we parents are also very busy, है ना? तो बच्चे the students bother कि भाई हमें इंटरनेट पे सब कुछ मिल रहा है, हम इंटरनेट से सब कुछ सीख रहे हैं, and they more people are like students, जितने भी हमारे बच्चे हैं वो ज्यादातर मोबाइल और लैपटॉप्स के ऊपर यूज करते रहते हैं सब कुछ, ठीक है? बट जो ये पॉस्को का है कंसेप्ट, और जो स्कूल्स में मैंने देखा है कि स्कूल में छोटे बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और बड़ों के साथ भी होती है, तो इनको स्कूल वालों के लिए भी तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब कोई लॉ ऐसा होना चाहिए, उनको टीचर्स को ट्रेनिंग दे ताकि वो बच्चे के साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम मतलब दे विल अंडरस्टैंड ना, क्योंकि 8 घंटे तो बच्चा स्कूल में रह रहा है। हम पेरेंट्स के पास तो कम से कम बस मतलब 2-3 घंटे रात में आया, खाया पिया और सो गया, ठीक है? तो स्कूल के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ताकि टीचर्स पे वो चीज पहले पता चले कि बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो दे विल अवेयर। तो उसके लिए हमारी मतलब गवर्नमेंट क्या कुछ ऐसे कोई लॉज इन्होंने लगाए हैं मैम स्कूल्स के लिए? जैसा आजकल आप देख रहे हो छोटे बच्चों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि इज एनी लॉज, इज एनी रूल्स अगेंस्ट द स्कूल्स? Yes, Pooja. Apurva, may I answer? Yes, ma'am. ma'am, please go ahead. So Pooja ma'am is Uh, going to work with educational institutes and universities. She's a patent agent and खुद Okay. advocate बनने की तैयारी है इनकी, तो legal awareness ये भी देती है, and she's a mother of 2, so she was genuinely concerned about this. So yes. Right. Pooja, very good thing what you asked is, and yes, agreed. Government is very active on this and serious on that. In this itself, POXO Act and POXO rules, there is a special provision and mandatory provision to have training for all staff in the school. All staff means not only teachers, non-teaching staff also. Everyone should undergo the training to understand whatever is happening, and training is required for children as well. It is mandatory as per CBSE guidelines, as per ICSE guidelines. Everywhere it is mandatory. अगर वो नहीं कर रहा है स्कूल तो इवन स्कूल एफिलिएशन कैन बी कैंसल्ड, बट वो सीबीएसई को पता कैसे पड़ेगा कि इस स्कूल में कुछ हुआ या नहीं हुआ? वो तो हमें बताना है, हमें बोलना है। हमारा क्या होता है, पेरेंट्स व्हाट दे डू, आप पीटीएम मीटिंग में जाते हैं स्कूल में, क्या बात करते हैं आप टीचर से? मेरे बच्चे के इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, उस टीचर ने बच्चे को ढंग से पढ़ाया कि नहीं? आपने कभी पूछा टीचर से जाके आपने अपने स्कूल में पॉक्सो की ट्रेनिंग करी है कि नहीं? आपने बच्चों को बताया है कि नहीं कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है? अगर कुछ है तो किसको जाके बताना है? आपने पूछा है कभी पीटीएम में जाकर? मैम इनके my daughters are in DPS Rajnagar Ghaziabad, so when my both daughters in nursery or prep, so that time they have told the students ki what is good touch and bad touch, but when they are growing na, so I don't know ki whether, because the kids told me ki mummy bad touch क्या है, good touch क्या है, even although अगर हम भी उनको कहीं बैक में हाथ लगाते हैं तो they are saying mummy it's a bad touch, right? But Very good. when the children are growing na, so that time they are not giving anything, I think this Exactly. awareness, So these trainings ऐसा sessions नहीं or है ना any once in a programs to the student, because बड़े मैम जो बच्चा नर्सरी प्रेप से आया पर जो बच्चा अब 8th 9th 10th में जा रहा है, exactly तो हार्मोन्स आर changing. बहुत जरूरी। Correct. That is where I say these trainings are not once in a lifetime. ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले बताया था तो दोबारा नहीं बताना है। These are the regular trainings. हर साल एटलीस्ट एक एकेडमिक ईयर में 2 बार बच्चों को ट्रेनिंग होना जरूरी है। ओके। एंड जो बच्चा जो हमने नर्सरी के बच्चे को बताया वो 10th क्लास के बच्चे को नहीं बताना है, अलग चीज बतानी है। बिकॉज जब 10th क्लास में है बच्चा तो वो 14-15 वाली एज में आ गया, उस टाइम पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। देयर वी हैव टू टेल देम लुक वी आर देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, डोंट गो टू गूगल, डोंट एक्सपेरिमेंट। So trainings are mandatory in all schools. Their parents also have to work. आप जब भी स्कूल जाते हैं टीचर से मिलते हैं, उन्हें फोर्स करिए कि आप नहीं कर रहे हो करो ट्रेनिंग, जरूर बोलना है। आप एक बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप बोल रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, दूसरे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से आप वहां मिलते हैं उनको बोलिए कि भाई ये करो, अगर नहीं करोगे तो हमारे बच्चे का नुकसान है।
Yes, So yes. we all have to together spread the awareness. Yeah. So I Then only definitely it can send be an sorted email. out. Yes, ma'am. I definitely send an email to the principal tomorrow so Yes, that they can arrange one this session so that maybe Apurva or other colleagues can have a session in the school. any Thank one of you. us can do the Yes, session. yes. That's not a Yeah, problem. yes. But Yes, ma'am. लोग सुनने को तो तैयार हो, हम तो तैयार हैं काम हाँ, करने के लिए. ma'am, definitely. Because you know, I also see very abrupt change in my daughter who is in 9th class. So maybe hormonal changes, है ना? But बहुत सारे changes है. But that changes are very different from our changes. जो Right. हम अपने एज में थे और अब जो जनरेशन गैप है ना, देखिए, that I have it seen. depends on the exposure children are Yes, facing now. yes, yes. Times have changed, so obviously what we have faced, today's children are not like that. Not, They are yes, otherwise much more exposed. Their knowledge is much more what we were having at that yes, age. yes, ma'am. So it's very different. But yes, yes, child should be open to come and talk to you. कि मेरे yes, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अब इसका क्या मतलब है? What is this? वो हमारे बीच में वो ट्रस्ट लेवल और वो ब्रिज होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. Yes, ma'am. Thank you for your this information, ma'am. Thank you, Pooja. Thank you. Questions Thank के बिना तो Thank you, ma'am. समझना होता है. Yes, Vicky, you would like to ask something? Ishan, Sakshi? No, ma'am. Okay. Self-explanatory, मतलब पूरा सेशन समझ आ गया अच्छे से. Good. ईशान, आप कुछ बताना चाहोगे? You would like to contribute? He's from Nalsar, bright second year student. He's interning at our firm virtually. Yes, Great. Ishan, can you hear us? All right. I think there are no more questions now, and this stage we would like to wrap up the session. Doesn't I would just like to say from the bottom of my heart, there is no vote of thanks we have rehearsed here, but without you, this session first of all would not have been conceptualized and would not have seen the light of the day in terms of its concrete form that it has now. So Thank you that's so all much, we ma'am. can say. Thank you so much. You are welcome, and thank you very much to all of you that you have given me this opportunity to come and talk to you and all others here. And we all of us have a hectic schedule. So to take out that time and as a guest of honor, to not only be restrained to a keynote speaker, but actually to stay put throughout the entire 2 hour No session, problem. and picking out time and ideas, to answer questions. That is very nice of you, ma'am. Thank you very much. Thank you, and always there to anyone who needs any help. We are always there. I'd like to thank my Thank you, ma'am. मैम जो Thank नॉलेज हमने यहाँ पे जो गेम किया इसको मैं भी सोसाइटी में आगे इसको Thank you, Vicky. Thank Very सबको good. करना बताऊंगा. है, वही करना है हमें. बहुत सारे स्कूल्स हैं, एनजीओज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनली ही आप देखो एंशियंट टाइम से एजुकेशन का हब है हमारी कंट्री में. तो आप प्लीज वहां भी स्प्रेड करने की कोशिश करो, बिकॉज हर इंसान, जैसे कहते हैं ना, हर बूंद पानी की जरूरी है, तो हर इंसान जरूरी है आगे शेयर करने के लिए नॉलेज. एंड आई वुड फॉर्मली लाइक टू टेक दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक माई हस्बैंड. वाइफ बहुत कम थैंक करती है, तो दिस इज he's a little, I wouldn't say introvert, कोर्ट में बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बट थोड़ा टॉक सेमिनार्स ये सब अवॉइड करते हैं. एंड पूरा योगदान दिया, पूरा सपोर्ट किया, मुझे हमेशा मोटिवेट किया. अगर मैं कॉस्ट टॉक्स में भी जाती हूँ, ये साथ रहते हैं. तो आई रियली फाइंड इट एज अ गॉड्स ब्लेसिंग फॉर मी. सो थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Okay.